शुरू साईं बाज़ारे नाले सां जेको निहायत महिरबान आहे। असां सभिनी मथां पंहिंजो ख़ासि रहम कंदड़ आहे। अल्लाह तबारक ताला के पाक और बाबरकत नाम से शुरू कि जो बरकत डालता है हर काम में, और हर काम का आगाज़, हर सिलसिला तकल्लुम का आगाज़, हर बज़्म का आगाज़, हर महफ़िल का आगाज़, ॻाल्हाइण जे हर सिलसिले जो आगाज़ जेकॾहिं अल्लाह साईं बाज़ारे नाले सां कजे, बल्कि हर कम जो आगाज़ उन नाले सां कजे त उन कम में बरकत पवे थी। अस्सलाम वालेकुम, हक़ मौजूद, नमस्कार, प्रणाम, Sat Sri Akal, Aloha, and welcome to class number 23 of Sindhi Language Learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, which is initiated by Government of Sindh free of cost for those who intend to learn Sindhi either as their mother tongue, they want to excel in it, or for those who want to learn it as a second language for their professional purposes or personal interests, whatever your interest may be. And if you are learning it due to your personal interest as the language of the land, that is more appreciable. But no matter if you need it for your professional needs, like you are somewhere Sindhi language teacher, or there are many marketing personnel who want to learn it just to multiply their communication skills, that's also very positive sign and very healthy exercise to learn another language. छाकाणि त जॾहिं बि असां नई ॿोली सिखूं था त असांजे ज़हन में हिकिड़ी नई दरी खुले थी, एक नई समत में हम झांकने के लिए एक दरीचा खुलता है हमारे ज़हन में। तो मुझे कहते हैं यासिर काजी, मेरी जानिब से ताइपुर खुलूस सलाम कबूल हो। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। This is 5:04 p.m. in Pakistan. This is 5:34 p.m. in India, 4:04 p.m. in United Arab Emirates. This is 3:04 p.m. in Hijaz al-Muqaddas. I'm in Kingdom of Saudi Arabia. This is 12:04 p.m. in London and rest of the parts of the United Kingdom. And यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं इस वक्त. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द टाइम जोन्स, वन ऑफ द 6 टाइम जोन्स ऑफ अमेरिका, दैट इज ईस्ट कोस्ट, व्हिच इंक्लूड्स Washington DC, the capital of United States of America, the New York, and some part of Canada, including Toronto. So this is 7:05 a.m. in the morning. And if we talk about East and Far East, तो सबसे दूर तरीन मुल्क जो है वो मशरिक का, जिस मशरिक के लिए इकबाल ने कहा कि मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, तो उसका हम भी मशरिक हैं, लेकिन बिल्कुल जहां पर मशरिक इख्तिताम पजीर होता है, जिसको फार ईस्ट कहते हैं, दूर ओभर जगह पाना चाहता है. That is Pacific region, Tokyo, and rest of the parts of Japan. 9:05 p.m. at night right now when we are talking to Tokyo or other parts of the globe. And this is 11:05 p.m. in Australia, Sydney, Auckland, and other cities. And this is 1:05 a.m. in, they have entered in February. यानी 1 मिनट पहली फरवरी जो थियान उते तारीख तब्दील थी चुकी है. So you might have seen कि जब कभी नए साल की सेलिब्रेशंस होती हैं तो सिडनी ऑकलैंड में सबसे पहले उसका खैर मकदम किया जाता है, क्योंकि वो उससे पहले उसके पड़ोसी मुल्क न्यूजीलैंड में शुरू हो चुका होता है. उसके बाद ये मशरिक की तरफ आता है, मशरिक के मुख्तलिफ ममालिक और फिर मिडल ईस्ट, तो फिर उसके बाद वेस्ट में जाता है. सो द फ्रेंड्स हु आर वाचिंग अस इन साउथ ईस्ट एशिया एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ एशिया एंड दूर ओभर मशरिक बईद जिसको कहते हैं, या फिर मिडल ईस्ट में, तो गुड इवनिंग टू दोज हु आर वाचिंग अस इन लंदन एंड other parts of UK. A late good morning or an early good afternoon to those the people who are watching us in listening to us in east coast of America. A very early good morning to those. तो तव्हां सभिनी खे असां सिक मझां सलाम कयूं था. So let's jump to the first slide, which shows that what we have to learn today, and that shows the date, that shows the modalities about the class. So as I told you that this, if you are participating for the very first time, this class is conducted by, organized by, compiled by, brought to you by Sindhi Language Authority. Sindhi Boliye Jo Baakhtiar Idaro. We call Sindhi Language Authority in Sindhi, Sindhi Boliye Jo Baakhtiar Idaro, and in Urdu we call it Muqtadira Sindhi Zuban, which is in Hyderabad. The head office is in Hyderabad, while we are talking from Karachi, the capital of Sindh.
This is the camp office of Sindhi Language Authority, and we are here to bring you to the Sindhi language learning course, which is online, Sindhi Boli Sikhya course, and this is class number 23 of this course. We started this course on 29th of December 2023. पिछले साल हमने शुरू किया था, एक क्लास हमने पिछले साल में की थी, and then today this is the last day of January. तो अमलन हम एक महीना कल मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन पहले महीने का सफर आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, यानी कल जब हम क्लास नंबर 24 करेंगे बशर्ते याद और दूसरी हालात, तो हम फरवरी में दाखिल हो चुके होंगे, सेकंड मंथ ऑफ द ईयर में. तो दिस इज अरबा. अरबा मीन्स अरबा, चार, चौथा दिन, which is Wednesday, which is बुध, जिसको बुध कहा जाता है. जैसे 31 जनवरी, 31 जनवरी. Let's learn how to pronounce these words and these dates in Sindhi. This is 31 जनवरी 2024 ईस्वी. This ain shows ईस्वी. अरबा 31 जनवरी 2024 ईस्वी. बुध 31 जनवरी 2024 ईस्वी. Wednesday, January 31st, 2024. अल्लाह से बाजार नालिसा सां आगाज़ कर चुका आहियूं ऐं उनखे ई इहा इल्तिजा आहे, उनखे इहा वेनती आहे, उनखे इहा मिंथ आहे त हू हर कम में, असांजे हर कम में बरकत विझे. आमीन. अवल अवलीम आला आलम जो धणी. केरु पढ़ी ॿुधाईंदो ही बैत मूंखे? पहिरीं सिट केरु पढ़ी ॿुधाईंदो? शाह लतीफ़ जो कलाम हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई के पहले चैप्टर का, जो जिसका नाम है कल्याण, उसके पहले चैप्टर का पहला ये शेर है. Who will recite this poetry for me? You have been listening to this poetry every day, so is there anybody who can help me in reading this? At least one line each. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. इसमें सर गिरामी मोहम्मद सर, हमजा फ्रॉम कराची. मोहम्मद हमजा साहब, आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप कैसे हैं को सिंधी में कैसे बोलेंगे? आप सर मुझसे तव्हां कीअं आहियो? मां ठीकु आहियां. तव्हां ठीकु आहियो हमजा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मां भी ठीक आहियां. जबरदस्त. तो ऐसे ही कॉन्वर्सेशन का आगाज करते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ जो है वो आपस में ये थोड़ा सा हेजिटेशन टूटे ना कि एक दूसरे से बात कैसे की जाती है. जी हमजा साहब, छा तव्हां ही बैत पढ़ी सघो था या घटि में घटि पहिरीं सिट पढ़ी सघो था हिन जी? सर कोशिश कयूं था. हाँ, कोशिश करियो. बिस्मिल्लाह. अवल अल्लाह अलीम, आला आलम जो धणी. थैंक यू सर. कादिर थैंक यू सर. पंहिंजी थैंक यू कुदरत सर. में. Thank you, sir. I'll need. Okay. Complete second line. Complete second line. Then I'll request somebody to come and to अस्सलाम read वालेकुम it. सर. To read it, sir. हिकिड़ो कादिर second hold करो. हिकिड़ो second hold करो. जी. जी हमजा साहब. कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम. ठीक है सर. ये पहली लाइन दोबारा पढ़िएगा हमजा साहब. पहली पहली सिट वरी पढ़जो. अवल अल्लाह अलीम, आला आलम जो धणी. ठीक है सर. थैंक यू. ये आलम ये सबके लिए है कि आलम लफ्ज पर हमें तवज्जो देनी है, क्योंकि लाम पर अगर जेर आ गई तो वो स्कॉलर बन जाएगा, आलिम बन जाएगा. आलिम यानी इल्म वाला, साहिब इल्म. आलम का मतलब है वर्ल्ड, आलम का मतलब है कायनात. तो इसको आलम पढ़ना है, लाम पर जबर है. थैंक यू मोहम्मद हमजा साहब. आई हर्ड एन अदर वॉइस. हु वाज ही? हु वाज द जेंटलमैन? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर. नालो ॿुधायो. ठीक सर. वकास अली सर. वकास साहब कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह सर. तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो मां सर? ठीकु आहियां अल्हम्दुलिल्लाह. ॿी लाइन पढ़जो, ॿी सिट पढ़जो. फ़क़ति ॿी सिट है, हिकिड़ी सिट. सर कादिर पंहिंजी कुदरत सीन कायम आहे क़दीम. Thank you very much. Who will read the third line? Somebody raised her hand. I think Rabia was there. Rabia, you were there? Yes, sir. कीअं आहियो रबिया? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तव्हां ॿुधायो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां. जी, तव्हां टी सिट पढ़ंदव? Yes, sir. पढ़ो. वइला वइली वाहिदु वाली वादहु वाली 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 वाहिदु वादहु राज़िकु रब्बुर रहीम. सही. सो सारा आहे सच्चो धणी. धनी. चई धनी हम नहीं, धनी नहीं, धनी. ध ध ध धाल.
धब्बा। धनी हाँ धनी। चई हमदो हकीम। चौथी लाइन दोबारा पढ़े, चौथी से ट्रबियर पढ़ो। तो सारा है सच्चो धनी जी चई हमदो हकीम। हाँ, यो 100 ना है, 100 सारा है सच्चो धनी। 100 बन जाएगा 100, 100 इज 100। 100 सारा है सच्चो, सिंपली इस पर जबर है, 100 सारा है सच्चो धनी। वॾी महिरबानी तव्हांजी रबिया। शादी असराज साहिब तव्हां हथ रेस कयो हुयो। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम शादी साहिब, कीअं आहियो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां मूंखां पुछो त मां कीअं आहियां, तव्हां आप मुझसे सवाल लें कि मैं कैसा हूँ, आप कैसे पूछेंगे सिंधी में? I can't hear you. Can you repeat it? शादी साहिब, can you repeat the sentence? I think आपने वो अदा किया जुमला, लेकिन मुझ तक नहीं पहुंचा। ॿीहर चवंदो, तव्हां की हाल है? तव्हां की हाल है? आपने सराइकी और पंजाबी मिक्स कर दी। ये तो हमने शुरू वाले सेंटेंस में पढ़ा था। ये होगा तव्हां कीअं आहियो। हाउ आर यू? तव्हां कीअं आहियो, कैसे बोले? सर असल में लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है, आवाज़ मुझे सही तरीके से आ नहीं रही। कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। जी, सिंपली पूछेंगे तव्हां कीअं आहियो, तव्हां कीअं आहियो। हाउ विल यू आस्क? तव्हां की आयो? तव्हां कीअं आहियो, उसके जवाब है मां ठीकु आहियां, या मां ठीकु आहियां अल्हम्दुलिल्लाह, मां या मुंहिंजी ठीक। तबीयत ठीकु आहे, या मां बिल्कुल ठीकु आहियां। बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। कैन यू रीड दिस फोर्थ लाइन फॉर मी? चौथी सत्र मुंहिंजे लाइ पढ़ी सघो था तव्हां हिन बैत जी? जी सर। सो सारा सच्चो ढड़ी चई हमदो हकीम। सारा है, पूरा पढ़े उसको, ऐसे फलांग के ना जाए उसको। दोबारा सो से पढ़े। सो सारा है सच्चो ढड़ी हाँ, ढणी नहीं है, चई हमदो ढाल नहीं है, हकीम। धब्बा, धब्बे वाला धाल है, ये धाल है, धड़ी। ढणी नहीं। हाँ धणी। दोबारा कहें। ओके सर। सो सो सारा है सच्चो धड़ी चई हमदो हकीम। थैंक यू। शर्जील साहब, कैन यू रीड दिस फिफ्थ लाइन फॉर मी? शर्जील साहब, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शर्जील साहब। जी सर। शर्जील साहब तव्हां कीअं आहियो? करी पाण करीम। शर्जील साहब तव्हां कीअं आहियो? सर मां ठीकु आहे। मां ठीकु आहे। मां ठीकु आहियां। मुंहिंजी तबीयत ठीकु आहे। हाँ, मुंहिंजी तबीयत ठीकु आहे, या मां आहियां। ठीकु आहियां। मां ठीकु आहियां फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, मां ठीकु आहियां। मां ठीक- ठीक है, कहें दोबारा कहें, ॿीहर चओ, जी सर। ॿीहर चओ, जवाब ॾियो हिनजो। मां ठीकु आहियां। मां ठीकु आहियां, या मुंहिंजी तबीयत ठीकु आहे। राइट। कैन यू रीड द लास्ट लाइन? करे पाण करीम जोड़ो जोड़ जहान जी, दिस लास्ट लाइन। जी। जी, करे पाण करीम जोड़ाऊं जोड़ जहां जी। जहान जी, जहान जी। जहान जी। जी, ये गुन्ना नहीं है, ज- जहान जी। थैंक यू, वॾी महिरबानी जहान तव्हांजी, वॾी महिरबानी तव्हांजी मोहम्मद शरीफ साहब। हु विल रीड दिस होल वर्स फॉर मी? पूरो केरु पढ़ी ॿुधाईंदो मूंखे? And I'll encourage, if your mother tongue is not Sindhi, I'll encourage if you read it. I'll encourage if अस्सलाम somebody... वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद इमरान ज़करिया सर मोहम्मद बात इमरान कर रहा ज़करिया साहब, तव्हां कहिड़े शहर मां था ॻाल्हायो? हूँ। मैं डेरा इस्माइल खान का। सिंधीअ में चयो न, सिंधीअ में जवाब ॾियो न हुनजो। तव्हां सिंधीअ में डेरा जवाब इस्माइल ॾियो। खान का गाल का ॻाल्हायां थो, करे ना। ॻाल्हायां थो। मां डेरा इस्माइल खान मां ॻाल्हायां थो। नोट कर लीजिए, दोबारा पूछूं तो आप ये जवाब देंगे। मां डेरा इस्माइल खान मां ॻाल्हायां थो। ठीक है, मां मां डेरा डेरा इस्माइल खान मां ॻाल्हायां थो, या ॻाल्हायां पियो। ठीक है, दोनों चलेंगे, ॻाल्हायां थो या ॻाल्हायां पियो। अब दोबारा कहें, जवाब दीजिए इसका। तव्हां किथां पिया ॻाल्हायो? मां डेरा इस्माइल खान मां डेरा इस्माइल खान तो गलाया तो। तू न, मां आई के लिए भी इस्तेमाल होगा, फ्रॉम के लिए भी इस्तेमाल होगा। मां इज फ्रॉम, मां इज मी। मां डेरा इस्माइल खान मां ॻाल्हायां पियो, 2 बार मां आएगा। दोबारा कहें। मां
मां डेरा इस्माइल खान मां गलाया थो। हाँ गुड, थो भी चलेगा, पयो भी चलेगा, पयो, पयो भी ठीक है, थो भी ठीक है। एक उसमें ज़मान हाल इस्तेमरारी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और एक सिंपल वर्ब है। राइट सर, कैन यू रीड इट फॉर मी? छा तव्हां ही बैत मुंहिंजे लाइ पढ़ी सघो था या सभिनी लाइ पढ़ी सघो था प्लीज़? जी सर, अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धनी कादिर पंजी कुदरत सीन पंहिंजी कायमो पंहिंजी आहे कदीम पंजी नहीं है, पंहिंजी पंहिंजी। दोबारा पढ़े सेकंड लाइन। कादिर कादिरो पंजी ओ पंहिंजी कुदरत पंहिंजी सीन हमजा पर जबर है, पंहिंजी पंहिंजी कुदरत सीन कायमो आहे कदीम वाली वाहिद वादहू राज़िक रब्बो रहीम सो सराय सचो धनी चय हमदो हकीम चई करे हमदो, पान चई नॉट चई, चई हमदो हकीम, चय हमदो हकीम चई नॉट चई। चय यस, चई हमदो चय हकीम, जेर है, हमजे पर जेर है, जबर नहीं, चय नहीं है। चय मीन्स कहे, चई चय मीन्स कहकर, चय मायने हमदो चेंज हो जाते हैं। हकीम दोबारा पढ़े सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन दोबारा पढ़े। सौ सराय सचो धनी ये सौ नहीं चय है हमदो मेरे भाई, ये सौ, ये सौ नहीं, ये सो आए, सो और सौ में फर्क है, सो औ और ओ में, सो सारा है, सो सौ एसो। सराय हम्म, सौ सराय सचो धनी चय हमदो हकीम करे पाण करीम मो जोड़ो जोड़ जहान जय जहान जी, जहान जी, जहान जी जहान जी, जहान नहीं है। सिंधी के यही तो हुस्न है कि आखिरी हर्फ पर उस पे हरकत आती है, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, जहान जी, जहान जी। जहान जी जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वॾी महिरबानी तव्हांजी। मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब, थोड़ो थोड़ो ॻाल्हाइण पाण सिंधीअ में सिखंदासीं तो हुन सां हेजिटेशन टुटंदी, यानी वो कहते हैं ना कि भाई मुझे समझ में आती है लेकिन बोलना नहीं है, बोलना तब नहीं आती जब आप यूज नहीं करते उसको, यूज करेंगे तो आएगी। कल का वर्ड ऑफ द डे क्या था? कल कौन सा लफ्ज हमने पढ़ा था? कैन एनीबडी टेल मी क्विकली क्विकली क्विकली, अ लॉट टू शेयर विथ यू, सो कैन एनीबडी प्रॉम्प्टली एंड क्विकली टेल मी, गाइड मी? इफ नहीं है याद तो हम आगे बढ़ते हैं। एनीबडी? रबिया हियर सर। रबिया साहबा, तव्हां कीअं आहियो? ॿीहर थो पुछां तव्हांखां, तव्हां कीअं आहियो? हाँ ठीक है ना मां ठीकु आहियां, गुड जी। सर। कल समोरो, समूरो क्या था? छा हुयो समूरो? पूरा, पूरा। एंटायर। ओके थैंक यू रबिया साहिबा। शादी सराज साहिबा, यू रेज योर हैंड, तव्हां पंहिंजो हथ मथे कयो। यस सर। जी सर इसकी जमा हमने पढ़ी थी सजा या समोरा। सजा या समूरा, गुड। अच्छा, जी इन जो असां फीमेल भी पढ़ियोसीं, फेमिनाइन, हु विल टेल मी फेमिनाइन इन छा? आयशा खान साहिबा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम आयशा खान, तव्हां कीअं आहियो? मां ठीक आहियां सर, तव्हां कीअं आहियो? मां बि ठीकु आहियां, तव्हांजी वॾी महिरबानी। कल्ह जेको असां लफ़्ज़ पढ़ियो हुयोसीं सॼो या समूरो, उनजो फेमिनाइन छा पढ़ियो जी हुयोसीं? सर, सजी, सजी ऐं समूरी। हाँ, सजी तो वो होती है कोयटा सजी, इसको पढ़े सजी, सजे, जी, सजी, 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 ठीक है, सजी वो होती है सजी। गोश्त वाली सजी, सजी, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस एंड जब तक ये कोर्स पूरा हो तो ये आपको ये ये सबको कहना आ जाए, और इस सिलसिले में हम कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे दैट विल हेल्प यू टू listen to those videos again and again, short videos, to understand that what is the difference between J and Nye and Ge, what is the difference between, and how to pronounce dal, deder. So प्रैक्टिस करने से चीज आएगी। तो कल हमने पढ़ा था सजो या समूरो, जिसका फेमिनाइन था जो फेमिनाइन हुयो सजी या समूरी, और जिसका प्लूरल था सजा या समूरा। तो आज का लफ्ज उसका अपोजिट है, और सजा या समूरा यानी होल या एंटायर का अपोजिट क्या होगा? क्या हो सकता है पूरे का? मैं अगर कहूँ पूरी रोटी खाए, ता सजी मानी खाइंदो, क्या आप पूरी रोटी खाएंगी? तो अगर आप पूरी रोटी नहीं खाएंगी तो उसका क्या हो सकता है? उसका नेवल बदल एक और, वैसे दो निवाले भी खा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट उसका उसका एंटोनियम क्या हो सकता है? कैन एनीबडी गाइड मी? कैन एनीबडी गाइड मी? फजीला सर। फजीला, तव्हां कीअं आहियो?
सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी फज़ीला साहिबा, सॼे जो छा थींदो? सॼे जो ज़िद छा थींदो? अध। अधु। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी तव्हांजी फज़ीला। सो वर्ड ऑफ द डे इज, कल हमने पूरा पढ़ा, आज हम पढ़ रहे हैं आधा। मसूद अहमद साहब तव्हां ॿुधाइण था चाहियो? मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम कीअं आहियो? सर, सभु कीअं आहियो ठीकु तव्हां? आहे ठीकु आहियो, ख़ैरियत सां आहियो? मसूद साहब सर? तव्हां इहो जुमिलो पुछो पिए सर्कल मां अटेंड न करे सघियुसि था, तव्हांजो इहो वर्ड ॿुधी मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी सर। कहिड़ो वर्ड सर ॿुधी? इन जे लाइ थोरो पिया अचे थो, थोरी मानी खाईंदो सर। हा, थोरो बि थी सघे थो, अधु थोरो पिया थी थी सघे थिए थो, ॿ थी सघे थो, पर रुॻो मानीअ थोरी। लाइ सॼो या समूरो इस्तेमालु नथो थिए। मिसाल तौर ते मां तव्हांखे चवां, तव्हां सॼी राति सुतव त तव्हां चवंदव त न मूं अधु राति बेक़रारीअ में गुज़ारी, अधु राति सुतुसि। त सॼे जो डायरेक्ट जेको माना हूअं त ईअं न आहे त को सॼे जो अधु ई जेको आहे सुन ज़िद आहे, पर सॼे खां पोइ डायरेक्ट असांजो ध्यानु जंहिं लफ़्ज़ ते वेंदो आहे उहो हूंदो आहे अधु, यानी पूरे का आधा, आधे सर का आधा। महिरबानी, शुक्रिया। मेहरबानी लगारी साहब, थैंक यू, खुश जो। मसूद लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है सांगड़ से। तो आधा या आधी, फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन, दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है सिंधी में, और वो बिल्कुल आसान है, वो है अध। अलिफ पर जबर, धे पर या धाल पर पेश, अध। या आप शेप में देख सकते हैं कि हाफ, चाहे आप व्हाइट वाले को देखें, आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा हुआ है, या ब्लू वाले को देखें, नीरे के ॾिसो या अच्छे के ॾिसो, भाई डिनोट था कन पे अध के, मीन्स आधा या आधी। ठीक है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों के लिए अध ही इस्तेमाल होता है। इट मीन्स हाफ, अध, ADH एपोस्ट्रोफी यू, अध, एपोस्ट्रोफी के बाद यू पेश को जाहिर करता है, एपोस्ट्रोफी के बाद ई जेर को जाहिर करता है, एपोस्ट्रोफी के बाद ए जबर को जाहिर करता है। राइट, तो दिस इज अध। अध मीन्स आधा, मीन्स हाफ, मीन्स निस्फ, चाहे फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो। यानी मानी इज रोटी, जो कि मुअन्नस है तो वो भी अध होगा, रात मुअन्नस है वो भी अध होगा, दिन मुजक्कर है वो भी अध होगा। तो अध दुनिया, मैं आधी दुनिया घूम के वापस आया हूं, तुम तो मुझे मिले ही नहीं, मां अध दुनिया घुमी वापस आयुसि, तुम तो मूंखे मिले ही न। अफलातून चयो, कौल थे आदे ते तव्हां शेयर थो कयां त कूड़ सच जेसि ताईं जुती पाईंदो आहे, सच जब तक अपनी चप्पल ढूंढता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम के वापस आ जाता है। जब तक, यानी वापस आने के बाद निर्वार तो वही होता है, कामयाबी तो उसी की होती है। सिंधी में एक मुहावरा है, सच तो बीठो नच, यानी अगर आपने सच बोला है तो फिर बीठो नच मीन्स नाचते रहो, उसका मतलब यह है कि यू विल विन, यू विल सक्सीड। ठीक है, तो अध का मतलब है आधी, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। अध सिंपल लफ्ज है, छोटा लफ्ज है, टाइनी लफ्ज है, इजी टू रिमेंबर, इजी टू राइट, इजी टू रीड, इजी टू प्रोनाउंस। अध मीन्स आधा। ठीक है, आधा, आधा या आधी, तो अध या आधे। प्लूरल के लिए भी अध इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर फीमेल के लिए, सिंगुलर मेल के लिए अध इस्तेमाल होता है। ये जामे लफ्ज है, तीनों में आपको काम आएगा। ओके, दिस इज वर्ड ऑफ द डे, अध। क्योंकि हमने पूरा या पूरो या समूरो, पूरी या समूरी, या सारी या समूरी, या सजी या समूरी, पूरे के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, कल हम सिर्फ दो लिखे थे। यानी सजो, सजो को पूरो भी कह सकते हैं, सजो को सारो भी कह सकते हैं, जैसे सारा उर्दू में बोला जाता है, लेकिन सिर्फ सीधा अल्फाज मैंने आपको सिखाया ताकि ज्यादा बर्डन ना हो आपके ऊपर। तो उसका अपोजिट इन अ वे इज अध। राइट, अज जो जुमलो, व्हाट वाज द सेंटेंस ऑफ द डे यस्टरडे, हु विल गाइड मी? कल हमने कौन सा सेंटेंस पढ़ा था? कल जो जुमलो कहिड़ो हुयो? हु विल टेल मी among you? Come on, hurry up, 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 hurry up. Who will tell me what was the sentence of the day? Aisha Khan. जी फजीला सर। सर। फजीला हिकिड़ो मिनट होल्ड कजो, आयशा पहिरें अची वई। जी आयशा। वो छा तव्हां के कंहिं शइ जी जरूरत आहे? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? दोबारा पढ़े, इसको कैसे बोलेंगे? छा तव्हां के खे, कंहिं खे, शइ के जी नहीं, जरूरत के नहीं, खे, खे, तव्हां खे खे। खे कंहिं शइ जी जरूरत आहे? ओके, ये जुमलो तव्हां किथे इस्तेमाल कंदा? ये जुमला कहाँ इस्तेमाल, वेयर डू यू यूज दिस सेंटेंस? उमूमन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है? सर मेहमानों के साथ।
मेहमानों की खातिरदारी करते हुए, और घर में भी रेगुलर। रेगुलरली भी। ओके। ऐं जेकॾहिं मां तव्हांखे चवां त इफ यू नीड, डू यू नीड एनी हेल्प, तो मैंने बताया था कि कौन सा लफ्ज चेंज होगा जिससे ये पूरा जुमला जो है अपने मायने तब्दील कर देगा। तो क्या बोलेंगे सिंधी में? डू यू नीड एनी हेल्प? शादी सिराज ॿुधाईंदी असांखे। शादी साहिबा तव्हां ॿुधाईंदव। सर ये जरूरत की जगह पर हम मदद लगाएंगे। छा तव्हांखे मदद जी जरूरत आहे? कंहिं मदद जी ज़रूरत आहे। कंहिं मदद जी मदद जी ज़रूरत ज़रूरत आहे। आहे। शाबाश, थैंक यू। फज़ीला तव्हां कुझु चयो पिए? जी सर, मां इहो कल वारो जुमिलो पे ॿुधायो, छा जी तव्हांखे ॿुधायो। कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे? इहो किथे किथे इस्तेमालु थी सघे थो? सर किथे बि जे असां को नीडी माण्हू ॾिसूं था त उनखे चवंदासीं, या को महिमान अची वियो उनखे मानी वग़ैरह सर्व पिया कयूं, ऐं वरी थोरी देरि खां पोइ अची पुछूं था त तव्हांखे कुझु खपे या सही। जीअं कंहिं शइ जी ज़रूरत जंहिंखे आहे। चइबो आहे संभालणु, थोरी देरि खां पोइ संभालणु, त कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे। ऐं जिते मदद जी ज़रूरत हुजे उते चवंदासीं डू यू नीड एनी असिस्टेंस, छा तव्हांखे कंहिं मदद जी ज़रूरत आहे। ख़ासि करे जेकॾहिं को कंहिं गैर मामूली सूरत हाल में हुजे त हुनखे चवंदासीं छा तव्हांखे कंहिं मदद जी ज़रूरत आहे। राइट, ईअं ई आहे न? ओके सर। जी सर। थैंक यू फजीला। तो आज का जुमला क्या है जनाब? ये थोड़ा सा रिमाइंड करवाना जरूरी होता है कि कल हमने क्या सीखा था। तो आज का जुमला भी आसान है और उमूमी गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाला जुमला है। हम उमूमी गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो जो सेंटेंस ऑफ द डे हैं होपफुली आपने अलग लिख रखे हैं। अगर अलग लिख रखे हैं तो मेरे साथ कॉन्वर्स करने के लिए उन जुमलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चाहे जरूरी नहीं कि वो जुमला वहां सूट करता है या नहीं सूट करता, लेकिन जस्ट टू यूज इट, जस्ट टू यूटिलाइज इट, आप जो वो जुमला कहेंगे उसमें गलती करेंगे, चाहे यूजेज में गलती करेंगे या प्रोनाउंसिएशन में, तो आई एम देयर टू करेक्ट यू। तो वो जो जुमले हम इस्तेमाल कर चुके हैं, सेंटेंस ऑफ द डे में लर्न कर चुके हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए, जीअं मां तव्हां सां हाल अहवाल थो कयां, तव्हां कीअं आहियो, तो उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन जुमलों में से किसी का इस्तेमाल हो सकता है। राइट। तो आज का जुमला है अक्सर हम अपनी सरजमीन के साथ, अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। सजने साणे कहण आसिया विसरे। तो अगर हम ये कहें कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, या मुझे अपनी सरजमीन से मोहब्बत है, या मुझे वतन की जगह पर रिप्लेस करेंगे मुझे अपनी जुबान से मोहब्बत है, या मुझे अपनी जुबानों से मोहब्बत है, या मुझे अपनी सरजमीन के लोगों से मोहब्बत है, मुझे अपनी मिट्टी से मोहब्बत है, मुझे अपने काम से मोहब्बत है, मुझे अपने जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपनी कौम से मोहब्बत है। बहुत सारी चीजें वतन को रिप्लेस कर सकती हैं, लेकिन बेसिक सेंटेंस हम ये सीख रहे हैं कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, जो कि उमूमी तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। टू ओन योर कंट्री, टू ओन योर होमलैंड, टू ओन योर जाए पैदाइश, तो आप कैसे कहेंगे? आई लव माई कंट्री, मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। मुझे को कहते हैं मुंह खे, मुंह दिस इज गुन्ना। याद रखिए, मैंने कहा आप अपनी सहूलत के लिए आप इसको कोई अगर निशानी देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन सिंधी में वैसे कोई एराब नहीं होती जो ये शो करे कि ये गुन्ना है या ये आम नून है। मुंह, मीम, वाव, नून आपस में मिले हुए हैं एक ही आवाज में। ये मून नहीं है, मून यानी चांद नहीं है, यह है मुंह। मुंह खे यानी मुझे, मुंह खे, ये दो अल्फाज मिलाकर उर्दू का एक लफ्ज उसका नेवल बदल बनाते हैं। मुझे का मुंह खे, मुझे, दिस इज खे, दिस नॉट के। ये जहन में रखिए कि सिंधी में काफ दूसरी तरह से लिखा जाता है, उर्दू वाला काफ सिंधी में खे है। तो ये रिप्लेसमेंट अपने जहन में बना लें, दो खाने बना लें, उर्दू और सिंधी के अलग अलग खाने बना लें, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों की अशकाल मिलती जुलती है। कल के टेस्ट में सवाल आया था कि 12 हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी शक्लें तब्दील हैं, आवाजें सेम है, तो उन 12 को डिफ्रेंशिएट कर ले। वो जो 2 स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था उसको बार बार देखिए कि सिंधी वाला काफ उर्दू में खे है, और सिंधी में जो जैसे काफ लिखा जाता है वो शक्ल उर्दू में है ही नहीं। सिंधी में फे है तो एक मुरक्कब हर्फ की सूरत में पे और है, लेकिन सिंधी में फे के साथ, फे फानूस के साथ जो है
3 नुक्ते लगते हैं। तो ये अपने जहन में 2 खाने अलग अलग बना लें, दोनों को मिंगल अप ना करें। तो दिस इज खे, मुखे यानी मुझे, प ही जे ये दोनों नून गुन्ना है, ये याद रखें। इसको पन हिन जे नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा, इसके 3 हिस्से हैं। लफ्ज को ब्रेक कीजिए, प, पे और नून गुन्ना है, नून गुन्ना आपस में मिले हुए हैं जबर के साथ। इसको हिज्जे कल की तरह कैसे करेंगे? पे नून जबर प, पे नून गुन्ना जबर प, हे नून जेर हे, पे हे, ये भी गुन्ना ये भी गुन्ना। आप अपनी सहूलत के लिए कोई भी निशान लगा सकते हैं इस पर, सिंधी में कोई निशानी नहीं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब तक कि याद हो, अजबर हो कौन कौन से अल्फाज में गुन्ना हरूफ आते हैं। तो ये इसके 3 हिस्से पहजे के, पे और नून, पे नून जबर प गुन्ना, पन नहीं है, प, हे नून जेर हे, जीम ये जबर जे, प हे जे, 3 आवाजों पर मुश्तमिल, प हे जे यानी अपने, पहजे जिसको आप ऑन करें, पहजे। वतन सिंधी में, उर्दू में तुए पर भी जबर आती है, वतन कहते हैं, और नून जो है वो साकिन होता है। सिंधी में वही उसूल के आखिरी हर्फ पर हरकत आएगी, लेकिन सिंधी में तुए पर पेश आता है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज है। मिसाल के तौर पर सवाल, उर्दू में कहते हैं सवाल, सिंधी में कहते हैं सवाल, सीन पर पेश है, उर्दू में सीन पर जबर आती है। ये अलग बहस है कि रूट वर्ड किसका है और फिर उसी के अंदाज में प्रोनाउंस होना चाहिए, अलग बहस है, लिंग्विस्टिक्स की बहस है, मैच्योर लिंग्विस्टिक्स की बहस है, हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो उर्दू में वतन तोए पर जबर आती है, सिंधी में तोए पर पेश के साथ मुस्तामिल है, जेर इस्तेमाल है, अंडर यूजेज है। वतुन, वाव पर जबर, तोए पर पेश, नून पर जबर, वतुन। जी जनाब, मुखे पंहिंजे वतन सां मोहब्बत आहे। I was talking about this sa. I hope shortly you will be able to see my slide. Now you can see my slide, right? Sa. Seen alif zabar. Seen alif noon gunna. This is gunna. Seen alif noon zabar. Sa. This is not san. This is sa. यहां पर भी गुन्ना है, ऊपर भी दोनों नून गुन्ना है, ये भी नून गुन्ना है। इत्तफाक से इस जुमले में तमाम के तमाम नून गुन्ना है, गुणा है नहीं, नकम आवाज न करंदो, इन जो अलग इंडिविजुअल प्रोनाउंसिएशन न थींदो। सीन अलिफ नून गुन्ना जबर सा, जबर के साथ ही तीनों बोले। जब आप हिज्जे करना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरतीब के साथ है। हिज्जे में क्या करते हैं? पहला हर्फ, दूसरा हर्फ, तीसरा हर्फ पहले प्रोनाउंस करेंगे, फिर उसकी हरकत शो करेंगे कि जेर जबर पेश है, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे, हिज्जे करेंगे। सीन अलिफ नून जबर सा, नून इज गुन्ना, माइंड इट। बार बार अपने जहन में रिमाइंड करवाता हूं कि इसको आप कहीं सान न पढ़ दें, इसको कहीं आप पनहिंजी न पढ़ें। यह है पहेंजी, पहेंजी, सा सा। मोहब्बत, उर्दू में भी हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, बहुत सारे लोग मोहब्बत कहते हैं। आप खान साहब मेहदी हसन खान की कोई भी गजल मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मीम पर जबर देते हैं। एक्चुअली ये अरबी का जो लफ्ज है उसमें मीम पर जबर है, सही लफ्ज मोहब्बत है, ठीक है। सिंधी में भी उसको मोहब्बत ही प्रोनाउंस किया जाएगा, मीम पर जबर। और हे और बे जो है मुशद्दद है, वो कि सिंधी में शद का इस्तेमाल नहीं होता, सिंधी में मोहब्बत बिचोना है, मोहब्बत लड़े वही मुल्क मां। बट जिस जुबान का लफ्ज है अगर उसी तरह से प्रोनाउंस किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मोहब्बत ते पर जबर, उर्दू में आखिरी हर्फ साकिन होता है, विदाउट एनी हरकत होता है, विदाउट एनी सुर होता है। सिंधी का उसूल है, जब तक वो आहे की तरह अगर वो खत्म नहीं होता है किसी वॉवल पर, तो आखिरी हर्फ पर हरकत आनी है। तो उर्दू में मोहब्बत, सिंधी में मोहब्बत, आहे अलिफ मदा, हे ये जबर है, आहे। मुखे पंहिंजे वतन सां मोहब्बत आहे, मुखे पंहिंजे वतन सां मोहब्बत आहे, मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। आई लव माई कंट्री। वतन की जगह पर मुल्क लगा लेंगे तो भी इट्स ओके, मोहब्बत की जगह पर प्यार लगा देंगे तो भी इट्स ओके। मोहब्बत और प्यार दोनों एक ही मायनों में इस्तेमाल होते हैं। उल्फत लगा देंगे तो भी इट्स ओके, क्योंकि इनकी मायने अलग है। अब इसी जुमले को दूसरे अंदाज में कहें तो कैसे कहेंगे? जमा में हम बहुत सारे लोग हैं,
हम क्रिकेट टीम है, हम हॉकी टीम है, हम कॉलेज की असेंबली में खड़े हैं, स्कूल की असेंबली में खड़े हैं, हम टीचर्स का ग्रुप हैं, हम मंदुबीन हैं, वी आर एम्बेसडर्स, वी आर व्हाटएवर। अगर एक साथ कहें कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, तो कैसे कहेंगे? यानी यहां था मुझे मुंह के, अगर कहेंगे हमें तो ये होगा असांखे, मुंह की जगह पर असा आ जाएगा। यहां था मुंह, यहां आ जाएगा असा। अलिफ पर जबर, ये अगेन नून गुना है, सीन अलिफ नून गुना जबर सा, सा, जैसे आसान लिखते हैं ना, सॉरी। सो असा, अलिफ पर जबर, सीन अलिफ नून जबर, नून गुना जबर सा, दिस असा के। बाकी सारे लफ्ज वही हैं, मैंने मोहब्बत को रिप्लेस कर दिया ताकि आपको पता चल सके कि मोहब्बत की जगह पर प्यार आ जाएगा या उल्फत आ जाएगा तो भी उसके मायने सेम है। असांखे पंहिंजे, वतन असां, प्यार आहे। वतन की जगह पर अगर मट्टी कह देंगे, सिंधी में मट्टी को मिट्टी कहते हैं, असांखे पंहिंजी मिट्टी सां प्यार आहे, मीन्स वी लव आवर सॉइल। मिट्टी का मतलब होता है सरजमीन जिससे हम पैदा हुए। असांखे पंहिंजी सरजमीन सां प्यार आहे, इट्स ओके। असांखे पंहिंजी धरती सां प्यार आहे, इट्स ओके। ये सारे जो है रिप्लेस करते हुए मायने एक ही निकलते हैं, राइट। असांखे पाकिस्तान सां प्यार आहे, दैट्स सेम थिंग। असांखे सिंध सां प्यार आहे, पंजाब सां प्यार आहे, बलूचिस्तान सां प्यार आहे, खैबर पख्तूनख्वा सां प्यार आहे, गिलगित बल्तिस्तान सां प्यार आहे, कश्मीर सां प्यार आहे, फलस्तीन सां प्यार आहे। यू विल जस्ट रिप्लेस द वतन, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल बी चेंजिंग एज पर जो आप वहां पर प्रॉपर नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से फ्रांस वाले कहेंगे मुखे फ्रांस से प्यार है, इसी तरह से इंग्लैंड वाले कहेंगे मुखे इंग्लिस्तान से प्यार है, इसी तरह अमेरिका वाले कहेंगे मुखे अमेरिका से प्यार है। आप कह सकते हैं मुखे सजी दुनिया से प्यार है, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी, तो यहाँ आ जाएगा असांखे सजे, कल हमने पढ़ा था सजे, सजे आलम सा प्यारा है या पूरी दुनिया सा प्यार है। याद है ना, फेमिनाइन के लिए पूरी इस्तेमाल होगा, पूरी या सारी या समूरी। असांखे सारी दुनिया से प्यार है, असांखे समूरी दुनिया से प्यार है, सो दैट विल बी ऑल्सो फाइन। ठीक है, तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वतन की जगह पर नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर पंहिंजे वतन की जगह पर आ जाएगा ना। यानी असांखे पाकिस्तान से प्यार है, असांखे इंग्लैंड से प्यार है, असांखे सॼी दुनिया से प्यार है, असांखे फ्रांस से प्यार है, असांखे धरतीअ सां प्यार है, असांखे चंड सां प्यार है, असांखे मार्स सां मरीख सां प्यार है। तो यू विल जस्ट रिप्लेस दिस noun, proper noun, and the sentence will carry its translation accordingly. तो वाहिद में मुखे पंहिंजे वतन सां मोहब्बत आहे, और जमा यानी मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, और जमा में असांखे, बोलने वाले जब बहुत ज्यादा हो, असांखे पंहिंजे वतन सां मोहब्बत आहे या प्यार आहे या उल्फत आहे। राइट? एनी क्वेश्चंस? आई होप दिस इज क्लियर। एनी क्वेश्चंस? Otherwise, we are moving forward to the results of first of all the key, सभिनी खां पहिरीं की, यानी कल जे जेका कल जी असाइनमेंट असेसमेंट टेस्ट थी, नॉट असाइनमेंट। सो दिस इज रबिया साहिबा, तव्हां कोई सवाल थियूं करणु चाहियो? Yes, sir. जी Sir, how do we call it कि I love myself in Sindhi? मां पंहिंजो पाण सां प्यार कयां थो, या मूंखे पंहिंजो पाण सां प्यार आहे। पंहिंजो पाण ये हो जाएगा मूंखे मूंखे। अब यहाँ पर मूंखे पंहिंजे की जगह पर पंहिंजो आ जाएगा, वाव आ जाएगा। इफ यू आर सीइंग माय स्लाइड, लुकिंग एट माय स्लाइड, मूंखे पंहिंजो वतन की जगह पर आ जाएगा पाण। पाण मीन्स सेल्फ, पाण सां मोहब्बत आहे या प्यार आहे। मूंखे पंहिंजो पाण सां मोहब्बत आहे, या मूंखे पंहिंजे पाण सां, मूंखे पंहिंजो, पंहिंजे भी ओके है, इट्स ओके, पंहिंजे पाण सां भी ठीक है, वो रॉन्ग नहीं है, पंहिंजो पाण भी ठीक है। मूंखे पंहिंजो पाण सां प्यार आहे या मूंखे पंहिंजे पाण सां प्यार आहे, बोथ आर करेक्ट। नोट इट डाउन, यू कैन यूज इट एनीवेयर। Thank you, sir. क्लियर? वेलकम, मेहरबानी जी। तो वी वर टॉकिंग Yes, sir. अबाउट वतन की मोहब्बत, और उसके बाद हम वी विल टॉक अबाउट द असेसमेंट number 3. That was assessment number 3, class assessment, weekly class assessment
नंबर 3, कल की क्लास तशखीस नंबर 3। राइट, आप में से कौन समझते हैं कि जाहिर है कि आपने सवालात के जवाब चेक किए होंगे, तो तमाम अकेर था समझन तो असांजो फुल मार्क्स आहिनि हुन में, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। केर केर हु आर कॉन्फिडेंट एज पर देयर आंसर्स दे हैव गिवन कि हमारे तो फुल मार्क्स है भाई, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारे तो फुल मार्क्स है। हु इज कॉन्फिडेंट इनफ? सवाल जवाब तो चेक किए होंगे ना आपने? नोबडी? हाँ, क्या हो गया, की हो यार? नोबडी इज कॉन्फिडेंट के आपके फुल नंबर्स हैं। ओके यस सर। जी, यस सर, जो नालो हूंदो सर न वकास अली सर। जी वकास साहब। सर वकास अली सर। जी वकास साहब। TR23 सर। जी जी। सर हिकिड़ो नंबर घटि हूंदो, बाक़ी फुल नंबर हूंदा। Okay. हिकिड़ी सवाल ग़लति। Okay. Good confidence. Anybody else? Anybody else? Who is confident? आयशा खान साहबा। जी सर, मैंने चेक की थी तो मुझे मेरे ख्याल से तो ठीक होने चाहिए सारे। सारे ठीक होने चाहिए, हैं नहीं, होने चाहिए। जी है अच्छा तकरीबन। हैं, मतलब you are confident that you will be taking 10 out of 10. जी। Okay. Thank you आयशा खान साहब। रबिया साहबा। रबिया साहबा। Can you hear Yes, me? sir. जी जी रबिया साहबा। सर मेरे 2 गलत होंगे। 2 गलत होंगे या हैं? हैं। 2 गलत हैं, तो आप मतलब यू आर कॉन्फिडेंट कि 8 नंबर आप लेंगी? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, ठीक है। शायद इसराज साहब, यू रेज योर हैंड, तव्हां पंहिंजो हथ मथे खयो हो पर हींअर तव्हां हेठि करे छॾियो। शायद इसराज साहब। यस सर, मैं जी। जी सर, मैंने भी चेक किया था, मेरी भी गलती है। गलती गलती, तो एक गलती गलती। है, 2 गलतियां हैं, कितनी हैं? एक ही गलती है, एक छोटी। गलत, गलती उर्दू में भी गलती, लाम गलती। पर जबर है, गलती। अच्छा, तो मतलब यू आर कॉन्फिडेंट कि गलती, यू विल बी टेकिंग 9 मार्क्स? आई थिंक। ओके, थैंक यू शादिया साहबा, वॾी तव्हांजी महिरबानी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इस टेस्ट के, ये टेस्ट हम क्यों लेते हैं, असेसमेंट टेस्ट क्यों लेते हैं? एनीबडी, एनी फीडबैक्स फ्रॉम दोज हु हैव नॉट येट पार्टिसिपेटेड इन टुडेस क्लास? एनीबडी जंहिं अञा ताईं पार्टिसिपेट कोन्हे कयो, कोई ॿुधाईंदो त असेसमेंट टेस्ट जो फ़ाइदो कहिड़ो हूंदो आहे, असां छा असेस करणु चाहींदा आहियूं हुन में? कुझु तव्हांखे आहे ज़हन में? रुगो इहो ई त तव्हांखे छा सेखारियो आहे रबिया साहिबा, ॿुधायो। रबिया साहिबा। साईं वकास अली सर। वकास साहब हिकिड़ो सेकंड होल्ड कजो। रबिया साहिबा, कैन यू हेयर मी? कैन यू एड एनीथिंग? कैन यू शेयर एनीथिंग? वकास साहब तव्हां ॿुधायो, ऐं उन खां पोइ जलील साहब खां पुछूं था क्विकली। सर जाइज़ो वठणु, छाजो? जाइज़ो वठंदा आहियो छाजो जाइज़ो? त माना केतिरी इनकरेज आहे माना स्टूडेंट में, त माना केतिरो ने सिखियो आहे या छा मिसाल तौर ऐं असां में असां जी उहा ॻाल्हि सम्झे थो या नथो सम्झे, ऐं असां ॾिसूं सही त उनखे घणो इंट्रस्ट आहे हिन शइ में। ठीकु आहे, इहा पहिरीं ऐं पॉइंट इहा टोटली थी। पहिरीं पॉइंट इहा थी, अग्रीड। इन खां अलावा ॿियो कोई फ़ाइदो कोई ॿुधाईंदो? थैंक यू वकास साहब तव्हांजे फीडबैक लाइ। जलील साहब, जलील मोहम्मद साहब। सर बिल्कुल, इसमें मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि जो जितना भी हम कोर्स कवर कर रहे होते हैं, ये बेसिकली उसको अंदाजा लगाने के लिए कि हम किस लेवल पर खड़े हैं। बेसिकली ये हमारा एक तरह से हमारा असेसमेंट है कि हम किस लेवल तक उसको समझ रहे हैं, उस मटेरियल को जो आप पढ़ा रहे हैं, चाहे वो रिटन है या वो है। ठीक है सर। एक और फायदा है, कोई बताएगा, कोई कोई गैस कर सकेगा? एक और फायदा है आपको, और उसके लिए आयशा खान साहबा। सर इसका एक फायदा ये भी है कि हम बार बार चीजों को रिपीट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ तक ठीक हम है, कर चुके हैं। ठीक तो है। उससे ये है कि अगर हम किसी चीज को भूलने भी लगते हैं तो फिर वो दोबारा से हमें रिवाइज हो जाती है, और छोटे छोटे पॉइंट हम दोबारा से रिवाइज करते हैं तो शायद स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू आयशा साहबा, मेहरबानी। रबिया साहबा। रबिया साहबा, शी वाज रबिया साहबा, आयशा खान साहबा। शी वाज आयशा खान साहबा। रबिया साहबा, यू आर रेजिंग योर हैंड बट यू आर नॉट टॉकिंग, शायद आप कनेक्ट नहीं कर पा रही।
मोहम्मद इमरान जकरिया साहब, यू कम एंड यू प्लेस योर फीडबैक। एक और फायदा है जो कोई नहीं बता रहा, जो अहम फायदा है। सर टेस्ट का ये मतलब होता है कि हमने जितना भी पीछे पढ़ा है वो बार तो हो गया, बार उसको, अगर कुछ ठीक है, लोग ठीक है सर, ये तो हो गया सर। एक और जॉब फायदा में लगे हुए हैं, वो नहीं देख सकते, तो इस तरह ना हो कि पीछे वाला हम भूल जाएं, आगू दौड़ते पीछू चोर। तो बार बार पढ़ने से हमारी प्रोनाउंसिएशन भी एक सेट होती है और हमें पिछला सबक जो है वो याद आ जाते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे फिर जल्दी। यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और फायदा है, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे और उसको नोट कर लें, ये फायदा आपकी जिंदगी भर काम आएगा। और अगर आप यू इंटेंड टू अपीयर इन एनी कमीशन एग्जामिनेशन, एक चीज काम आती है। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक बात कही थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो एफिशिएंट होते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है, जिनके पास स्टडी होती है, लेकिन वो कवर नहीं कर पाते कमीशन के एग्जामिनेशंस को। क्योंकि कमीशन के एग्जामिनेशन में एक चीज बहुत अहम होती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट और सवाल के ट्रिकी होने को समझना। सवाल पूछ क्या रहा है। कभी कभार आप पूरा सवाल नहीं पढ़ते सिर्फ इसलिए कि आप उस अबड़ दबड़ में कि मुझे ये 100 सवालों के 100 मिनट के अंदर जवाब देने हैं, आप आधा जवाब लिखते हैं, उसके आधे मार्क्स आपको मिलते हैं। क्योंकि वो पेपर कमीशन का, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या किसी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, उसकी की कंप्यूटराइज्ड होती है। आपके जवाब कंप्यूटराइज्ड, उसमें सिंपैथी का कोई आंसर होता ही नहीं है, राइट। तो बहुत सारे जवाब जो आपको आ रहे होते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को पर्सनली जानता हूं कि जिनको वो ट्रिकीनेस समझ में नहीं आती उस सवाल की। वो सिर्फ मैथमेटिक्स के सवालात में नहीं होती है, हर टेस्ट में हो सकती है। इसमें थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को ट्रिकी इसलिए रखते हैं कि यू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन एंड रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड टू द कंप्लीट वन। एक मिसाल दूं आपको छोटी सी। बहुत सारे लोगों ने गलती की, तकरीबन आधे लोगों ने गलती की। सवाल क्या था? सवाल था कि हफ्ते के कोई भी 2 दिनों के नाम लिखें और उसका उर्दू या अंग्रेजी में तर्जुमा लिखें। बहुत सारे लोगों ने छंछराचर सुमर अंगारो लिख दिया, तर्जुमा नहीं लिखा, दे लॉस्ट 1 पॉइंट। देयर वर 2 पॉइंट्स ऑन द कंप्लीट आंसर। आपने छंछर लिखा तो शनिचर सामने आफ्ता लिखना था, जुमेरात खमीस लिखा तो सामने जुमेरात लिखना था, अगर जुमो लिखा तो सामने जुमा लिखना था, अगर अंगारो लिखा तो मंगल लिखना था। जिस किसी ने जल्दी में सिर्फ 2 नाम लिख के छोड़ दिए, रीड द कंप्लीट क्वेश्चन। आपके सेंसेस प्रेजेंट होने चाहिए। ये कमीशन के इम्तिहान की तैयारी के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैंने पूछा कि ऐसे, सुनिएगा गौर से, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल आपके जहन में क्लियर करती है चीजों को। मैंने पूछा ऐसे कितने, कौन से नहीं पूछ रहा, ऐसे कितने हुरूफ हैं जो उर्दू और सिंधी में सेम है लेकिन उनकी शक्लें तब्दील हैं। कितने पूछ रहा, कौन से नहीं पूछ रहा। क्या फे और डे और ये, नो, कितने, हाउ मेनी। 2 है, 10 है, 15 है, 100 है, 50 है, कितने, कितने, हाउ मेनी। 3 जुबानों में लिखा हुआ है। कितरा सिंधी में लिखा हुआ है, कितने उर्दू में लिखा हुआ है, हाउ मेनी इंग्लिश में लिखा हुआ है। 3 जुबानों में लिखा हुआ है। जिसने जल्दी में ये पढ़ा और उन्होंने ये लिखना शुरू कर, भाई तादाद चाहिए मुझे, तादाद। जिस तरह से ये तादाद थी कि कितनी जुबानें पाकिस्तान में रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, तो कितने पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं आपके कितने भाई हैं, ये नहीं पूछ रहा कि कौन कौन से भाई हैं। आप कह रहे हैं असलम, सलीम, आजम, नो, आई एम जस्ट आस्किंग 2 और 3 और 5 और 10, जस्ट टेल मी द नंबर ऑफ योर ब्रदर्स। जहन में आया? अब आप कहेंगे ओ मुझसे तो ये गलती हो गई। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे। अंडरस्टैंड द ट्रिकीनेस ऑफ द क्वेश्चन। ये सिर्फ आपकी असेसमेंट नहीं है, ये भी है कि आप प्रिपेयर हों कि एग्जामिनेशन में, कमीशन के एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल आते हैं। कभी कभार हम उनकी मोडालिटीज को समझ नहीं पाते और गलत लिख के आ जाते हैं। हमें सही मालूम होता है लेकिन हम जल्दी में सिर्फ इसलिए कि उफ कितना टाइम हो गया, बाकी इतना टाइम लगा, उफ कितना टाइम हो गया, इतना टाइम रह गया है। बहुत सारे ऐसे लोग लिटरेचर से वाबस्ता जो सुबह शाम लिटरेचर में घुसे हुए हैं, वो अपनी लैंग्वेज के लिटरेचर की कमीशन क्लियर नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए कि मैनेज नहीं कर पाते वहां पर सवालों।
तो अगर किसी ने कमीशन क्लियर नहीं की या एग्जामिनेशन मुकाबले का या सीएसएस का कोई कवर नहीं क्लियर नहीं किया, इट डजंट मीन दैट ही और शी इज नॉट एफिशिएंट, he or she is not meritorious, but he or she lost his temper, his temperament or her temperament during the examination and गलत ऑप्शन पे टिक हो गया। ये चीज आपने यहाँ का जो आपने मॉनिटर है वो ऑन रखना है, ये चीज आपने देखनी है। अब आप में से कितने लोग कहते हो यार मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, मैंने तर्जुमा नहीं लिखा। अगर आपने सिर्फ नाम लिखे ना, हफ्ते के 2 दिनों के नाम लिख दिए, तर्जुमा नहीं लिखा, तो आपके 2 में से 1 नंबर आए, ये आप देख लीजिएगा। तो सवालात कौन से थे जरा उनको देख लें और उनकी की को देख लें, राइट। और कितने और कौन से वाली बात देख लीजिएगा। सवाल जो सही जवाब, सवालात के दुरुस्त जवाब, द करेक्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन, कल की जो असाइनमेंट नंबर 3 थी, राइट। नंबर पहला सवाल था सिंधी बोलियों में, गौर से सुनिएगा, ये दिस इज ऑल फॉर यू, ठीक है। बेशक आप कर चुके हों, बेशक आप पढ़ चुके हों, लेकिन गो थ्रू इट अगेन, कोई हर्ज नहीं है 3 बार 4 बार 10 बार रिपीट करने, एक ही चीज को रिपीट करने, वो जहन नशीन होगी, फायदा होगा उससे। क्वेश्चन नंबर 1 था सिंधी बोलियों में सतरंगी धनक खे। अब जाहिर है कि यहाँ पर मैं असल लफ्ज लिखता तो वो तो जवाब था उसका, और ये जवाब याद रखिएगा, सवाल में कभी जवाब नहीं होता। मैं अगर कह रहा हूं कि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, अगर सिंधी में लिख रहे हैं खे सिंधी में छाछ है वो, व्हाट डू यू कॉल सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी सिंधी, तो आपको वो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी सिंधी में नहीं लिखना, उसका तर्जुमा जो हर क्लास की पहली स्लाइड पे होता है, मैं 2 से ज्यादा बार रिमाइंड करवा चुका हूं कि ये भी सवाल आ सकता है, याद है आपको। और आपने जो आप में से अक्लमंद है उन्होंने नोट भी कर लिया होगा कि हाँ ये सवाल आ सकता है, वो सवाल आ भी गया। सो दिस इज, ये तो आजमाइश है, हल्की सी आजमाइश है, ये कोई इतना वो नहीं है कि इसमें कोई जजा और सजा है, लेकिन दिस विल प्रिपेयर यू फॉर द ग्रेटर एग्जामिनेशंस। अगर आप उसको उसमें इंडल्ज हो जाएं तो यू विल अंडरस्टैंड, राइट। पहला सवाल था सिंधी बोलियों में सतरंगी धनक खे छा चइबो, धनक खे डैश चयो वेंदो आहे। धनक इसलिए लिखा कि असल जवाब तो नहीं देना था ना इसमें, मैंने सवाल किया था, तो ये सवाल ही है। कौसे कजा को या धनक को सिंधी में डैश कहा जाता है। रेनबो इज कॉल्ड डैश इन सिंधी, माइंड इट। एक बात और याद रखिए, गौर से सुने, डोंट मिक्स अप विबगर विथ द रेनबो। अगर ये सवाल किया जाए कि कौसे कजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है रेनबो। अगर ये सवाल किया जाए कि रेनबो में कलर्स कौन से होते हैं, तो उसका जवाब है विबगर। जेकॾहिं इहो सवाल कयो वञे त सिंधी ॿोलीअ में धनक या कौसे कज़ा खे छा चइबो आहे, त उनजो जवाब आहे इंडलठ। अगर मैं ये पूछूं कि इंडलठ में कलर्स कौन से होते हैं, तो उसका जवाब है गुत्त पसानो, उसका जवाब है विबगर। विबगर इज नॉट द नेम ऑफ दैट पट्टी, कलरफुल पट्टी का नाम है इंडलठ, उसका नाम है रेनबो, उसका नाम है कौसे कज़ा, उसका नाम है धनक, उसका नाम है इंद्रधनुष, ये उसके नाम है। अगर ये पूछा जाए कि कलर्स कौन से होते हैं, तो वो कलर्स याद रखने के लिए कि पहले गाढ़ो है, पो तुरंजी है, पो नीरो है, वो याद रखने के लिए गुत्त पसंद तो एक फॉर्मूला है, एक एक्रोनियम है, जस्ट टू रिमेंबर कि उसमें कलर्स कौन से होते हैं। अगर ये सवाल आए कि कलर्स कौन से हैं, तो उसका जवाब होगा गुत्त पसानो या विबगर। अगर ये पूछा जाए कि इस पट्टी को कहा क्या जाता है, उसका जवाब है इंडलठ है, उसका जवाब गुत्त पसानो या उसका जवाब विबगर नहीं है, राइट। अंडरस्टैंड। अब आप बहुत सारे लोग जो है ना सर पे ऐसे मार रहे हैं, उफ मैंने तो गुत्त पसानो लिख दिया, गुत्त पसानो का सवाल आ चुका था। तो सवाल यह है कि सिंधी बोलियों में सतरंगी धनक खे छा चयो वेंदो आहे, इंडलठ चयो वेंदो आहे। इस ब्लैंक में आएगा इंडलठ, पहले ब्लैंक में सिंधी बोलियों में सतरंगी धनक खे इंडलठ चयो वेंदो आहे। The correct answer to question number 1 was इंडलठ। Then सवाल नंबर 2 था डैश एंड डैश। सिंधी बोली जा उहे ब मुनफरिद लफ्ज आहिनि, अभी 3 दिन पहले हमने पढ़ा। डैश एंड डैश मेरे ख्याल में जुमेरात को हमने पढ़ा। डैश एंड डैश सिंधी बोली जा उहे ब मुनफरिद लफ्ज आहिनि जेके उन्हनि जे हेठां बिट्टी खड़ी ज़ेर लगाए लिखिया वेंदा आहिनि। यानी ज़ेर तो ऐसे लिखी जाती है, लेकिन खड़ी ज़ेर और डबल ज़ेर, बिट्टी मीन्स डबल, ट्विन, ठीक है। 2 बार जो है वो डंडी ऊपर से नीचे आ रही है। कौन से ऐसे अल्फाज हैं, कौन से ऐसे हरूफ हैं कि जिनके साथ जो है वो बिट्टी खड़ी ज़ेर लगाए हुए लिखा वेंदा है। ज़ाहिर है कि एक हर्फ के नीचे 2 खड़ी ज़ेर आएगी तो लफ्ज बन जाएगा, तो हर्फ नहीं रहता, वो कंप्लीट लफ्ज है।
तो डैश और डैश सिंधी जुबान के ऐसे दो मुनफरद अल्फाज हैं जो उनके नीचे दो खड़ी जेर लगाकर लिखे जाते हैं. Sorry. Dash and dash are two unique words of Sindhi language which are written by putting दो खड़ी जेर underneath these both. और वो हैं आए और में. आए और में. आए और में. आए means or and में is inside, within, in. आए और में. ये दो ऐसे अल्फाज हैं, हरूफ नहीं अल्फाज हैं. ये अगर खाली लिखता, दो खड़ी जेर नहीं आती तो ये हर्फ होता, लेकिन दो खड़ी जेर आ गई तो ये आए कंप्लीट आवाज वाला लफ्ज बन गया. दिस आए, दिस माई, मे नॉट माई. मे, मैं मीन्स मी. मे मीन्स विद इन, इनसाइड, इन. आए इज एंड दिस एंड दिस, दिस एंड दिस. छंछर आचर सूमर अंगारो आए अरबा, आखिरी लफ्ज से पहले आए आता है. एंड जहां जहां पर और इस्तेमाल होता है वहां पर ए इस्तेमाल होता है. तो इस सवाल का सही जवाब है ए. The answer to question number, the correct answer to question number 2 is the correct answers. क्योंकि दो मार्क्स का सवाल था, तो आए और मैं आएगा, इसके में आएगा इसके सवाल के जवाब. फिर है सवाल नंबर 3. उर्दू या अंग्रेजी में सिंधी लफ्ज ढरो जी मान अच्छा है. वर्ड ऑफ द डे पढ़ चुके हैं हम, अभी पढ़ चुके हैं 3 दिन पहले. सिंधी लफ्ज ढरो सिंधी में लिखा है, उर्दू में लिखा है, दोनों में का उर्दू या अंग्रेजी में क्या मतलब? What does ढरो means in Urdu or English? That is ढीला और लूज. कोई भी चीज अगर इंटैक्ट ना हो, कोई भी चीज लूज हो तो उसको कहेंगे दिस इज लूज. मेरी टाई लूज हो सकती है, कोई रस्सी लूज हो सकती है, किसी बांधने वाली चीज कोई लूज हो सकती है, कोई रिश्ता लूज हो सकता है. ठीक है. लूज का मतलब है कि जो चीज टाइटेंड ना हो, जो इंटैक्ट ना हो, उसको लूज कहा जाता है. ढीला, लूज इज ढीला, यानी ढरो इज ढीला, which means loose in English. सवाल नंबर 4. सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के सिंधी में कीअं लिखे हुए मीन्स व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी. जो मैं रोजाना बताता हूँ कि उर्दू में मुख्तदर सिंधी जुबान, सिंधी में सिंधी बोलिए जो बाख्तियारदार हो. सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी को सिंधी में कैसे लिखा जाता है? अगर यही पूछना होता और आपने यही लिखना होता, यही सही जवाब होता, तो मैं सवाल में जवाब क्यों देता? राइट सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी इन सिंधी. हाउ डू यू राइट? उस इदारे का नाम तो आना चाहिए ना, आपकी मादरे इल्मी है, आप उसी से पढ़ रहे हैं. ये जो क्लास है, ये जो शिक्षा पाठ है, ये सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का है. कल आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का मिलेगा. ठीक है. सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी आपकी दरसगाह है, उसका नाम तो आना चाहिए ना, उर्दू में भी, सिंधी में भी, इंग्लिश में भी, कि जहां पर 3 महीने लगाकर आप रोजाना 1.5 घंटा लगाकर, उसके अलावा असाइनमेंट का वक्त लगाकर आप जहां से आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो उस इदारे का नाम तो आना चाहिए, सिंधी में आना चाहिए, क्योंकि सिंधी लैंग्वेज लर्निंग कोर्स है. अगर चाइनीज लैंग्वेज लर्निंग कोर्स होता तो आपको चाइनीज एम्बेसी का नाम चाइनीज में लिखना आना चाहिए था और बोलना आना चाहिए था. तो द करेक्ट आंसर टू सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के सिंधी में छा चुका है सिंधी बोलिए जो बाख्तियार इदारो. रोजाना पहली स्लाइड जो होती है उस पे टॉप पे लिखा होता है इंग्लिश में, दूसरी लाइन होती है नीचे सिंधी बोलिए जो बाख्तियार इदारा. सिंधी बोलिए जो यानी सिंधी जुबान का बाख्तियार इदारा. इसकी ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं. तो दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी. सिंधी बोलिए जो बाख्तियार इदारो. बा और अख्तियार एक ही लफ्ज है, लिहाजा यहाँ गैप नहीं आएगा. बा और अख्तियार, वैसे अख्तियार अलग लफ्ज है, लेकिन बा अख्तियार यानी साहिब अख्तियार, अख्तियार रखने वाला, अथॉरिटी रखने वाला, तो ये एक लफ्ज बन जाता है. तो ये उसमें गैप नहीं आएगा, अलग अलग नहीं लिखेंगे. बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लिखा है, तो इसको माइंड इट. बा अख्तियार इज वन वर्ड. बा अख्तियार दोनों अलिफ एक साथ आ रहे. इदारो उर्दू में इदारा, सिंधी में एक को इदारो, सिंधी में इदारा प्लूरल हो जाएगा. तो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी इज सिंधी बोली जो बाख्तियार इदारो इन सिंधी. क्वेश्चन नंबर 5. हफ्ते जा के ब ॾींहं हैं सिंधीअ में लिखो. पूरा सवाल था ये. सिंधीअ में लिखो. उन 2 ॾींहंनि जी उर्दू या अंग्रेजी में माना पढ़ लिखो. अगर आपने उन दिनों की मीनिंग ट्रांसलेशन इंग्लिश या उर्दू दोनों में से किसी एक में लिखी है तो आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे. अगर आपने सिर्फ सिंधी में लिखी छोड़ दिया है तो आपको आधे नंबर्स मिलेंगे हैं उसके. हफ्ते के कोई भी 2 दिन सिंधी में तहरीर करें. अब आप बताएं कि पहले सवाल से पूछें कि भाई तुम क्या हो, सवाल की हैयत समझकर फिर जवाब दें, तो कंप्लीट आपको मार्क्स मिलेंगे. हफ्ते के कोई भी 2 दिन सिंधी में तहरीर करें और उनके अंग्रेजी या उर्दू में मायने लिखें. राइट एनी 2 days ऑफ द वीक इन सिंधी विद देयर इंग्लिश एंड और उर्दू ट्रांसलेशन, या उर्दू में या इंग्लिश.
सारे दिन है, हफ्ते के 7 दिन लिखे हुए हैं, कोई भी आपने 2 लिखे होंगे तो बिल्कुल सही होगा। सूमर इज पीर, अंगारो इज मंगल, अरबा इज बुध, खमीस इज जुमेरात। आज है अरबा, आज है बुध, कल होगी खमीस जो है जुमेरात, जुमो इज जुमा, छंछर इज शनिचर या हफ्ता। क्लासिकल उर्दू में हम शनिचर बोलते हैं, या फिर आजकल हफ्ता, यानी हफ्ता वहां पर ब्रेक होता है, दैट्स वीक एंड, तो इसलिए हम उसको हफ्ता बोलते हैं। वैसे तो हफ्ता पूरे वीक को बोला जाता है। आचर है इतवार। इनमें से कोई भी 2 आपने लिखे और इंग्लिश या उर्दू में ट्रांसलेशन लिखी तो आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 was सिंधी एंड उर्दू आयोटा में, आयोटा मीन्स हुरूफ तहजी, आयोटा मीन्स अलिफ बे, आयोटा मीन्स हुरूफ तहजी की तख्ती, आयोटा मीन्स पट्टी, ये तमाम पट्टी उसके नाम है। आयोटा मीन्स वर्णमाला, आयोटा मीन्स वर्ण पट्टी, ये तमाम नाम है उसके। सिंधी उर्दू आयोटा में अहड़ा केतरा मैंने हाईलाइट किया है, केतरा, और यहां हाईलाइट किया है कितने, और यहां हाईलाइट किया है हाउ मैनी। व्हिच नहीं पूछा, कहड़ा नहीं पूछा, कौन से नहीं पूछा, कितने, कितने आदमी थे। तो आप बोलेंगे 2 सरदार, मतलब वो 2 हैं 12 है, तो आप उसके जवाब देंगे कितने के। वो ये नहीं पूछ रहा कौन से आदमी थे, उनके नाम नहीं पूछ रहा, शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं पूछ रहा, कितने। जब कितने पूछे तो आप उतने ही लिखेंगे, तादाद लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे। सिंधी उर्दू आयोटा में अड़ा केतरा अखर है जिन जा आवाज तो हू बहू सा गया है, पर लिखण में उन्हनि जो शक्लूं तब्दील है, यानी सुनने में सेम है, बोलने में सेम है, लेकिन इमला उनका मुख्तलिफ है। सिंधी और उर्दू हरूफ तहजीब में ऐसे कितने हरूफ हैं जिनकी आवाजें बिल्कुल हूबहू हैं, लेकिन तहरीर में उनकी शक्लें या इमला में उनकी शक्लें तब्दील हो जाती हैं। हाउ मेनी सच लेटर्स आर कॉमन इन सिंधी एंड उर्दू अल्फाबेट्स whose sounds are same but their shape in writing differs in both languages? वो है 12। 2 टेबल्स की सूरत में आपको, मुझे लेक्चर नंबर याद नहीं है लेकिन मौजूद हैं, आप स्लाइड्स को गो थ्रू करें, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसका सही जवाब है 12 ऐसी आवाजें हैं कि जिनकी आवाजें साउंड सेम है लेकिन शक्लें तब्दील है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान में केतरियूं मंजल, मंजल मीन्स रिकॉग्नाइज्ड, तस्लीम शुदा, मंजल है। मतलब मैं अपनी एक जुबान बना लूं, उसके अल्फाबेट्स भी बना लूं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कहलाएगी। रिकॉग्नाइज का मतलब है कि यानी उसके बोलने वाले हैं, एक सर्टेन तादाद में उसके बोलने वाले हैं, उसमें लिटरेचर लिखा जाता हो, उसकी क्राइटेरिया है। तो पाकिस्तान में केतरियूं मंजल बोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं। हम जुबानों की बात करें, डायलेक्ट्स की नहीं। ऐसे सिंधी जुबान में बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। मैंने कहा ना कि लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे उत्तरादी लहजो, लाड़ी लहजो, लासी लहजो, विचोले जो लहजो, कोहिस्तान जो लहजो, थरज जो लहजो। उर्दू में जैसे दिल्ली की उर्दू, मेरठ की उर्दू, हैदराबाद दक्कन की उर्दू, अब हैदराबाद करके बात करते हैं, मुख्तलिफ है। दिल्ली का स्कूल ऑफ थॉट या बोलने का अंदाज अलग है, इसी तरह से साउथ का बोलने का अंदाज अलग है। तो उर्दू में डायलेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, सिंधी में डायलेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, लैंग्वेजेस इटसेल्फ, लैंग्वेज व्हिच हैज एन अल्फाबेट, जिसकी जैन जी आयोटा हो जाए उन्हें ॻाल्हाइण वारनि जो पर्टिकुलर तादाद है। पाकिस्तान में केतिरियूं मंजल बोलियूं ॻाल्हाई वञनि थियूं। वेरी फर्स्ट लेक्चर, गो थ्रू द स्लाइड्स ऑफ वेरी फर्स्ट लेक्चर। पाकिस्तान में कितनी तस्लीम शुदा जुबानें बोली जाती हैं? हाउ मेनी एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेजेस आर देयर इन पाकिस्तान, स्पोकन देयर इन पाकिस्तान? दीज आर 77। अगर आपने ये लिखा है कि 70 और 80 के दरमियान है तो आपका आधा जवाब सही होगा, क्योंकि एक्यूरेट तादाद आपको बताई गई थी और ये फिगर्स हैं 2023 की, हर साल चेंज होती रहती है। हर साल जब अभी 21 फरवरी को आएगा ना मादरी ज़बान का आलमी दिन, तो उसमें एक पूरी रिपोर्ट आती है, तो उसमें आप देखेंगे कुछ डाइंग लैंग्वेजेस हैं जो कि कम हो जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंक्लूड हो जाती हैं। तो 77 लैंग्वेजेस आर देयर व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस स्पोकन इन आवर डियर कंट्री, डियर होमलैंड पाकिस्तान। आखिरी सवाल था, हेठें जुमले की सिंधी में तर्जुमो करें। दर्ज झील जुमले को का सिंधी में तर्जुमा करें। आप क्या करते हैं या आपकी मसरूफियात क्या है? ट्रांसलेट द अबव सेंटेंस इनटू सिंधी। 2 तरीकों से बोला जाता है इसको। सेंटेंस ऑफ द डे में हम एज इट इज हूबहू पढ़ चुके हैं। तव्हां छा कंदा आहियो, तव्हां छा कंदा आहियो, या तव्हां जी मसरूफियत छा है। थोड़ा सा उसको हमने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में पूछ लिया, यानी वो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप क्या करते हैं, और उसमें आजकल आपकी मसरूफियत क्या है पूछते हैं ना। आजकल आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, आजकल आपकी मसरूफियत क्या है, आजकल आप कहाँ बसते हैं,
आजकल आप किस इंस्टीट्यूशन के साथ हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मुख्तलिफ तरीक़ा इसको पूछने के। तो सिंधीअ में जेके ॿ बेसिक तरीक़ा आहिनि, तव्हां छा कंदा आहियो या तव्हांजी मसरूफ़ियत छा आहे, या इफ़ यू नो कि समबडी इज टीचर तो उनसे आप डायरेक्ट सवाल करेंगे आजकल आप किस स्कूल में हैं या किस कॉलेज में हैं, या आजकल आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। आपको पता है कोई सिविल सर्वेंट है तो आप पूछेंगे यू आर सर्विंग देयर, यानी ये पता है कि करते क्या है। फिर आप ये सवाल करेंगे कि आजकल आप तयनात कहाँ पर हैं, आजकल आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, तो डायरेक्ट सवाल वो आ जाएगा। या आपको पता है कि एक टैलेंटेड बंदा है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हेड करता रहता है, लेकिन 10 साल के बाद आप अचानक से पूछेंगे व्हिच ऑर्गेनाइजेशन यू आर लीडिंग नाउअडेज, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन यू आर रनिंग नाउअडेज, आजकल आप किस तंजीम से वाबस्ता हैं या किस तंजीम की सरबराही कर रहे हैं। तो ये सवाल चेंज होते रहते हैं। बेसिक जवाब है तव्हां छा कंदा आहियो या तव्हांजी मसरूफ़ियत छा है। Coming to this course, I'm sorry I'm having a heavy cough due to weather changes, तो उसके लिए आपकी समा खराश हो रही है, I'm so sorry for that. तो इस कोर्स ऑफ दिस टेस्ट, राइट, हम रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। अगेन मैं बताता हूँ कि दिस शुड नॉट बी द सोर्स ऑफ योर डिस्करेजमेंट, दिस इज जस्ट यू नो समथिंग टू पुश यू, something to encourage you to learn more, to go through your previous lectures, to go through your previous slides, to learn it more. ऐं जिते जिते ग़लतियूं थियूं आहिनि, जॾहिं भी इंसान थाबो खाईंदो है, जब भी इंसान कोई ठोकर खाता है तो वो इसलिए होती है कि आप दोबारा से ये देखें कि आपका जूता ठीक नहीं है, या सड़क पे पानी था, या अंधेरा था, आप देख नहीं सके, कोई पत्थर रखा था। तो थोड़ा सा विजिलेंट होने के लिए होता है, विजिलेंट होने के लिए होता है। मैंने पहले भी कहा था कि आप जितनों को आपको जो TR नंबर्स अलॉट हुए हैं, सर्टिफिकेट तो सबको मिलेगा, लेकिन यू आर हेयर, वी आर हेयर फॉर लर्निंग। आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, यू आर समहाउ लर्निंग फ्रॉम दी स्लाइड्स, और शायद मुझसे भी कुछ ना कुछ मिलता हो। तो उसको तनदही से करें ना, उसको तनदही से करें, अच्छे तरीके से करें। जो मैंने कहा था, कोई भी ना काम अधूरा करो, हर काम पूरा करने के लिए मुकम्मल पूरे एसेंस के साथ उसको करने में मजा आता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्कोर्स, लेकिन ये स्कोर्स आपके इम्प्रूव करने के लिए हैं, ये कोई जजा और सजा का वो नहीं है। लेकिन यू मस्ट सी कि कहाँ कहाँ पर मुझे आता था, मैंने जल्दबाजी में गलत जवाब दिया, और कहाँ कहाँ पर वाकई मुझे रिवाइज करना चाहिए था। सो फ्रॉम रिवर्स ऑर्डर, आसिफ महमूद अवान साहब का 1 नंबर आया है, मोहम्मद जलील साहब के 3 नंबर्स आए हैं। आई होप जलील साहब को बहुत सारे जवाब मालूम होंगे, लेकिन शायद क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ना करने की वजह से जो है वो कुछ मार्क्स उन्होंने लैग किए हैं। अफरोज साहिबा के 3 नंबर्स हैं, रबिया साहिबा के 7 नंबर्स हैं। मेरे ख्याल थोड़ी देर पहले रबिया साहिबा पाण ॿुधायो हो तो शायद 1-2 सवाल जवाब मुझा गलत आए। अब देख लीजिएगा, क्योंकि की आपने देख ली कहाँ कहाँ पर आपने आधा जवाब दिया है और कहाँ कहाँ पर कंप्लीट जवाब दिया है। आइलीन साहिबा जो 7 मार्कूं आहिनि, यू कैन लिसन के इन जुमले के सिंधी में छा चइबो आहे। आइलीन साहिबा के 7 नंबर्स हैं, को सिंधी में क्या बोला जाता है, इसको भी यू कैन लर्न हाउ टू से इट। आइलीन साहिबा जो 7 मार्कूं आयूं आहिनि, फज़ीला कासिम साहिबा जो 7 मार्कूं आयूं आहिनि, मक़सूद अली साहब जो थोड़ी देर पहिरियों असां मसूद साहब सां पिया ॻाल्हायूं, मसूद लगारी साहब सां, बट दिस इज़ मक़सूद अली साहब जंहिंजूं 7 मार्कूं आहिनि। रिज़वान ख़ान साहब जो 7 मार्कूं आहिनि। फ़ाइज़ा मुस्तफ़ा साहिबा के 7 नंबर्स हैं। शाज़िया सिराज साहिबा की 8.5, 8.5 नंबर्स, 1.5 नंबर जो है वो कम है, शायद उन्होंने भी गैस किया था। उसके बाद वक़ास अली साहब 8.5, 8.5 मार्कों। करीम बख्श साहब जो 9 मार्कों। आसिफ इकबाल साहब 9 नंबर हैं। मोहम्मद शर्जील साहब के 9 नंबर्स हैं। नदीम सनफ मोहम्मद सोहू साहब, उनके 9 नंबर्स हैं। और 10 आउट ऑफ 10 में हमारे 4 जो है वो स्ट्रीम्ड लर्नर्स हैं। मोहतरमा आयशा तारिक साहिबा, मोहतरम मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब, मोहतरम मोहम्मद हमजा साहब और मोहतरमा आयशा खान साहिबा, उनके 10 आउट ऑफ 10। मेरे ख्याल में आयशा साहब आपने गैस किया था अपने हवाले से, बट वो आपके लहजे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये है स्कोर्स, एक बार फिर बताते चलो, एक बार फिर अब स्लाइड 1 देखें। आसिफ महमूद अवान साहब 1, मोहम्मद जलील साहब 3, अफरोज साहब 3, रबिया साहब 7, आइलिन साहब 7, फजीला कासिम साहब 7, मकसूद अली साहब 7, रिजवान खान साहब 7, फ़ायज़ा मुस्तफ़ा साहब 7, शाज़िया सिराज साहब 8.5, सेम गोज़ विद वक़ास अली साहब 8.5, करीम बख्श साहब 9, आसिफ इकबाल साहब 9, मोहम्मद शर्जील साहब 9, नदीम सोहू साहब 9, आयशा तारिक साहब 10,
मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब 10, मोहम्मद हमजा साहब 10, आयशा खान साहब 10. वेरी गुड. सबके लिए बकअप है और आई होप के यू विल डू इट मोर अटेंटिवली, मोर एफिशिएंटली, मोर मेरिटोरियसली, राइट. तो अगले टेस्ट में आप इम्प्रूव करें इन ग्रेड्स को. अब टोटल स्कोर्स जो है इसके बाद क्या है, जो टोटल हमारी शीट बन रही है उसमें पूरी क्लास की पोजीशन क्या है. यू कैन लुक एट योर स्कोर्स. फायदा मुस्तफ़ा साहिबा का टोटल स्कोर इस वक्त जो है तमाम मिलाकर, यानी ये परसों वाले असाइनमेंट, जुमे वाले असाइनमेंट मिलाकर और आज के टेस्ट के, ये आज के टेस्ट के रिजल्ट्स हैं. ऊपर लिखा हुआ है 30 जून, यानी कल जो टेस्ट हुआ था उसका, और इसके ऊपर जो है वो जुमे की तारीख लिखी है कि ये जुमे का जो है रिजल्ट है, यानी आपके असाइनमेंट और असेसमेंट दोनों के नंबर्स इसमें हैं. जैसे ही क्लास डिस्कनेक्ट होगी तो आप रिकनेक्ट करेंगे फॉर अ वाइल, ताकि हम इसको वाइंड अप कर सकें, राइट. फायदा मुस्तफ़ा साहबा के टोटल स्कोर है 33.5. आयशा खान साहबा का टोटल स्कोर है 40. शाजिया सराज साहबा का टोटल स्कोर है 33.5. सेम गोज विद फायदा मुस्तफ़ा एंड शाजिया सराज साहबा. रबिया साहबा 29. रबिया साहबा यू नीड टू एक्सेलरेट योर स्पीड और कम से कम गलतियां करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्कोर्स में इजाफा हो. और आइलिन साहबा 31. आयशा तारिक साहबा 25. मोहम्मद जलील साहब, मिस्टर मोहम्मद जलील 25.5. मिस्टर मोहम्मद इमरान ज़करिया 33.5. सेम गोज विद फायदा मुस्तफ़ा साहबा, शाजिया सराज साहबा और मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब. आप तीनों जो हैं वो एक ही स्कोर पर है. मोहम्मद नदीम सनफ मोहम्मद सहूद साहब 26 स्कोर है. आपकी 2 असाइनमेंट्स पहले रह गई थी, वरना आपका स्कोर ज़्यादा होता. करीम अख्तर साहब वेरी गुड 35.5. So, ladies and gentlemen, we were talking about these scores. We were on the second slide of these scores, and we were talking about. I hope you are able to see my slides now. So, I was talking about the scores of Fazila Qasim Sahiba. Fazila Qasim Sahiba 31. अच्छा स्कोर है, लेकिन you need to improve it. वैसे 30s में जिनका भी स्कोर है वो अच्छा स्कोर है. मिस्टर मकसूद अली साहब 34. Mr. Mohammed Hamza Saab 36.5, a good score. Mr. Asif Iqbal Saab 33. Mr. Mohammed Sharjeel Saab 31. Mr. Zishan Ahmed Saab 15.15. Mr. Mohammed Faizan Ahmed Saab 12.5. कल के टेस्ट में न जाने क्यों आप अपियर नहीं हो सके थे, जिशान साहब भी अपियर नहीं हुए. आयशा बलूच साहिबा मुसलसल 4 जो असाइनमेंट्स हैं उनके मिसिंग हैं, तो योर स्कोर इज 9. And then we are moving to the last slide. Score की मिर्जा शहबाज बेग साहब 8. मिस्टर रिजवान खान साहब 16. आप ताजी पहले गैर हाजिरी रही है, लेकिन वो 9 बजे तान स्कोर स्ट हो जाए. मिस्टर आसिफ महमूद अवान साहब 7.5 आपका स्कोर है. अफरोज साहिबा 9 तान स्कोर आहे. मिस्टर वकास अली 15.5 तान जो स्कोर आहे. मिस्टर अदील अहमद साहब 5 आपका स्कोर है. मिस्टर मसूद अहमद लगारी साहब 4 आपका स्कोर है, क्योंकि कल के टेस्ट में और उससे पहले वाले असाइनमेंट में आप नहीं थे, बल्कि उससे पहले वाले टेस्ट में भी गालिबन आप नहीं थे. मोहतरमा एरम नाज साहिबा 3, ये है स्कोर. तो आप देख लीजिए कि टॉप स्कोर कौन है और उनको कैसे आपने अप्रोच करना है, रीच करना है. मिसाल के तौर पर आयशा खान साहिबा जैसे 40 ते आए तो 33.5 वारा, या उनखां अॻिते वारा जेके बि आहिनि 30 में 31 वारा या 34 वाला, 35.5 वाला करीम साहब, 36.5 वाले हमजा साहब, आसिफ इकबाल साहब 33, मोहम्मद शर्जील साहब 31. तो वे दे विल ट्राई के हाउ टू रीच दिस 40 स्कोर बाय आयशा खान साहब. सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड थैंक यू सो मच के आपने अपनी इस कदर अपने इंटरेस्ट के साथ जो है वो इसको कैरी फॉरवर्ड किया है. आई होप दैट ये इंटरेस्ट आपका, अभी पहला महीना पूरा हुआ है, बाकी 2 महीने भी आपका इंटरेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेगा, जारी रहेगा. तो हम कल क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ उसको एक नज़र देख लेते हैं और फिर उसका रिवीजन हम यकीनन जो तफसीली रिवीजन है जो कि रहता है विच इज़ ड्यू, दैट विल बी डन टुमारो. बट कल हमने जो है वो आपसे गुजारिश की थी कि उसको, उस टेबल को, उस पट्टी को पढ़िए
कैन एनीबडी टेल मी कि अच्छा इज देयर एनी एरर इन द रिजल्ट? कोई अगर चीज हो करीम साहब कल जेको तव्हां चयो हुयो जेको इंक्लूजन कराइजे वही तव्हांजी असाइनमेंट आई होप असांजी टीम हुन में इंक्लूड करे छॾी आहे मुंहिंजो ख़्यालु आहे। एनी रिफ्लेक्शंस ऑन थैंक यू योर सर, थैंक रिजल्ट यू। अची वियो हुन में करीम साहब शामिल थी वियो? हाँ ठीक है साईं, अची वियो। गुज़िरियल दफ़े बि हो पर मूं अलाए किथे मोकिले छॾी, पर मोकिली हुई, ठहियो ख़ैर आहे। अच्छा ठीकु हाणे आहे। अची तव्हां वियो। कल वारी ॿ मार्कूं मिली हो न तव्हांखे? हाँ मिली मिली, महिरबानी, ठीक है। थैंक यू। Any other reflections on this result or table? Any other feedback or any reflections? Okay. तो सिंधी आयोटा जी पट्टी कहाँ पहुंचे थे, किस पड़ाव पर पहुंचे थे, केड़े थाक ते पहुता हुयासे, केड़े थाक ते पहुता हुयासे असां? केर ॿुधाईंदो? who will guide me? We have 10 more minutes. We will end at 6:30. शादिर सिराज साहब किथे पहुता हुयासे? सर टेबल नंबर 7 ओ जो चार्ट। ओ जो चार्ट, तो ओ जो चार्ट में कैसे पढ़ा था हमने, कुछ बताएंगे? कुछ आइडिया है, कुछ याद है? जी सर। कैसे पढ़ा था शुरू वाले अलिफ ग्रुप वाव में? ज़बर ओ, अलिफ वाव ज़बर ओ, बे वाव ज़बर बो, बे वाव ज़बर बो, ते भे वाव ज़बर भो, ते वाव ज़बर तो, थैंक यू, थे थैंक यू, वाव ज़बर थो। बड़ी मेहरबानी तमाम जी शादिर सिराज साहब। एनीबडी एल्स? कौन सी हमने कल पढ़ी थी इस पट्टी में से, कौन सी वाली जदवल पढ़ी थी? और उस जदवल की का तफसीली रिवीजन जो कि ड्यू है हम कल करेंगे और उसकी मश्क फिर परसों करेंगे। हु विल टेल मी व्हाट वाज दैट जदवल? व्हाट वाज दैट जदवल? एनीबडी? ओके, तो ये थी कल जो हमने रिवाइज किया था। ये कंटेंट्स हैं, ये फहरिस्त है, और ये बार बार इसलिए दिखाना जरूरी है कि ये मिरर है। ठीक है, मिरर में देखना जरूरी है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। यानी ऊपर वाले जब जब हम रेड से हाईलाइट करते हैं, इसका मतलब यह है कि इससे पहले वाली जदवलें जितनी भी हैं वो हम पढ़ चुके हैं। सिंधी अलिफ बे जो चार्ट मीन्स हम अल्फाबेट वाला आयोटा वाला चार्ट पढ़ चुके हैं। फिर अदाखरी जदवल, जबर जो चार्ट, जेर जी जदवल, पेश जो चार्ट, मदद या अल्फे जी जदवल पढ़ चुके हैं। और दिस इज ओ जो चार्ट जो हमने कल पढ़ा था, आपने ही पढ़ाया था, आपने ही पढ़कर सुनाया था। तो वो ओ जो चार्ट जो है या ओ जी जदवल जो है वो ये थी जो हमने कल पढ़ी थी। और कल हमने हिज्जे करके पढ़ी थी। हिज्जे कैसे पढ़ते हैं? जैसे अलिफ वाव जबर ओ, बे वाव जबर बो, बे वाव जबर बो। अब मैं एक बार उसको रवा पढ़ लेता हूँ, यानी प्लेन पढ़ लेता हूँ, ताकि आपके जहन में हो कि अलिफ वाव जबर ओ जो है वो रवानी में अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो दिस इज ओ, बो, बो, भो, तो, थो, टो, ठो, टो, ठो, ठे उर्दू में भी है लेकिन लिखी अलग तरह से जाती है, टे और हे की इम्तिजाज से लिखी जाती है। सो, पो, जो, यो, जो, जो, सजो, कल हमने पढ़ा सजो, समूरो, यही था जो, राइट। झो, न्यो, चो, छो, छो वाय, बता तो खुद एक लफ्ज है, छो वाय। हो, खो, दो, खो, दो खो, यानी धोखे को सिंधी में दोखो भी कहा जाता है। दालवा और खेवा, दो खो, ठीक है। दो, धो, धाल वा जबर धो, डो, डो, धो, जो, रो, रो, जो, सो, शो, सो, जो, तो, जो, ओ, गो, फो, फो। दोनों फर्क देखें, एक में होंठ नहीं मिलते, एक में ब्लो करते हैं हम, होंठों से ब्लो करते हैं। सिर्फ वो जो फो वाली जो ब्लो है वो आपके होंठों के दरमियान से निकल जाती है, लेकिन फो में हम दरमियान में होंठ मिलाते हैं। लिंग्विस्टिक ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स, वो आज़ा जो इस्तेमाल होते हैं अल्फाज को अदा करते हुए, बोलते हुए, बात करते हुए। फूल और फूल में ये फर्क होता है। फूल में होंठ मिलते हैं, फूल, फूल में होंठ नहीं मिलते, ब्लो करते हैं। तो यह है फो, फो। फानूस, फीथो, फानूस, फीथो। हक्की, राइट। फकीर, फकीर, हक्की, दोनों फर्क है।
फानूस पीथो, तो ये फो, हो, को, खो, गो, गो, घो, ngो, लो, मो, नो, णो, णो is the combination of noon and day, णो, नो, णो, वो, हो, ओ, यो, ho, o, yo. These are 52 sounds of o वाली जज्बल। हम तफसीली गो थ्रू करेंगे इसको कल, और ये जो हम रिवीजन करते हैं एक एक हर्फ का, द चार्ट ऑफ ओ वी विल रीड टुमारो। आखिरी 5 मिनट में हम वो सेगमेंट करते हैं जो काफी दिनों से अवेटेड है, जिसके हम 2 हिस्से कर चुके हैं, लेकिन उसका तीसरा हिस्सा जो है उसमें 3-4 रिश्तों का हम जिक्र करते रहते हैं। हमारा आखिरी सेगमेंट हुआ करता है कि जिसमें हम मुख्तलिफ एक ही सेगमेंट से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ अल्फाज सीखते हैं, तो उन्होंने लफ्ज़न के सिंधीअ में छा चइबो आहे। तो जीअं असांजी आम गुफ्तगू स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रेंथन थे, असांखे लफ़्ज़ ख़बर पवनि, वोकेबलरी ख़बर पवे, असांजी वोकेबलरी में इज़ाफ़ो थे, असां नोट कंदा वञूं ऐं पोइ उनखे इस्तेमालु करूं। सिर्फ नोट करने के लिए नहीं होती चीज़ें, इस्तेमाल करने के लिए भी होती हैं। मुझे लगता है कि इसके 2 सेगमेंट्स और भी होंगे, लेकिन इसके 3-4 रिश्ते आज हम पढ़ लेते हैं, ताकि जो रिश्तों वाला हमने सेगमेंट किया था उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें। आखिरी 5 मिनट में मैं ये 3-4 रिश्ते आप तक कम्युनिकेट करूं। सो दिस इज रिश्तन जा नाला सिंधिया में, दिस इज पार्ट 3। रिश्ते हैं ही इतने ज्यादा, और इंसान सबसे बाउंड होता है, सबकी तरफ जवाबदेही भी होती है सबकी। तो मुख्तलिफ रिश्तों के नाम सिंधी में पार्ट 3, वेरियस रिलेशंस इन सिंधी पार्ट 3। ठीक है, हमने लास्ट मेरे ख्याल में मामूजाद और खालाजाद और फूफीजाद और ये वाले किए थे हमने रिश्ते। अब आते हैं मैटरनल साइड पर। मैटरनल साइड पर मामू वगैरह तो कर चुके हैं और मामू जाद भी कर चुके हैं, लेकिन नाना को क्या कहते हैं? सिंधी में नाना को कहते हैं सिंपली नानो, उर्दू में नाना, सिंधी में नानो। सिंधी में अगर नाना कहेंगे तो 2 सूरतें में होगा, जैसे बाबा के लिए मैंने बताया था, जैसे चाचा के लिए बताया था। या तो प्लूरल में कहें, प्लूरल में कहें कि नाना, आप दोनों के नाना, तहां बिन्ही जा नाना किथे आए, या तो प्लूरल में आप जिक्र करें। या जब आप मुखातिब होते हैं, नाना साईं, वैसे तो हम अब्बा कहते हैं नाना को भी, या अब्बू कहते हैं, बड़े अब्बू कहते हैं मुख्तलिफ नामों से, लेकिन अगर उस रिश्ते को डायरेक्ट पुकारा जाए या खत लिखें तो उसमें तखातुब होता है प्यारा नाना साईं। तो सिंधी में नाना या तो प्लूरल के सूरत में इस्तेमाल होगा, बाबा की तरह, मामा की तरह, चाचा की तरह, दादा की तरह, ये सब पर अप्लाई होगा। सिंगुलर अगर जिक्र करेंगे एज थर्ड पर्सन तो हम कहेंगे मुझो डाडो मेरे दादा, मुझो नानो मेरे नाना, मुझो चाचो मेरे चाचा, मुझो बाबो यानी मेरे बाबा। जमा में जिक्र करेंगे तो बाबा हो जाएगा, या जब तखातुब होगा डायरेक्ट हम मुखातिब हो रहे तो होगा बाबा। तो नाना पर भी अप्लाई होता है। नाना को सिंधी में बोला जाता है नानो, ये गुन्ना नहीं है नून, ये सॉलिड नून है। नून अलिफ जबर ना, नून वाव जबर नो, ना नो मीन्स नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर, नानो मैटरनल ग्रैंडफादर, राइट। और उसी की जो अहलिया, हमारी नानी, हमारी अम्मा की अम्मा, हमारी वालदा की वालदा, दैट इज नानी। नानी को नानी बोलेंगे। फर्क यह है कि सिंधी में ये पर नुक्ते आ जाते हैं। मैटरनल ग्रैंड मदर इज नानी। नून अलिफ जबर ना, नून ये जेर नी, नून अलिफ जबर ना, नून ये जेर नी, नानी, नानी मीन्स मैटरनल ग्रैंड मदर, अंडरस्टैंड। अब नाने के क्या हुए, वो हमारे नाना हुए या नानी हुई, हम उनके नवासे हुए। तो मैं हुआ नवासा अपने नाना का, आप हुए अगर मेल हैं तो नवासे, अगर फीमेल हैं तो नवासी, राइट। तो पहले नवासे को सीख लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है लेकिन ज़ाहिर सीखना है। नवासा, मैटरनल ग्रैंडसन इज कॉल्ड डोहट्रो, डोहट्रो, डोहट्रो। डाल डेडर, डेडर मीन्स फ्रॉग, कल मैंने बताया था फ्रॉग मीन्स मेंढक, राइट, डड्डू। उस मेंढक को डाल डेडर प्रोनाउंस किया जाता है। डाल बाल जबर डो, हे जेर हे, टे बाल जबर टो, डो हे टो, डो टो, ठीक है। लेकिन ये वाव रवानी में अदा करेंगे हम,
डोटो नहीं करेंगे, हम कहेंगे डोटो, डोटो ही होने जो डोटो। पंजाबी में भी दोतरा कहते हैं, दोतरा दोतरी, पोतरा पोतरी, पोट्रो पोट्री, डोट्रो डोटरी। पोट्रो इज पोता, पोट्री इज पोती, डोट्रो इज नवासा, डोटरी इज नवासी। तो ये होगा डोट्रो, डोट्रो। हे भी स्लाइटली उसके प्रोनाउंसिएशन आएंगे, डोट्रो, डोट्रो, डोट्रो पूरा नहीं इसको करेंगे। हिज्जे में तो हम देखेंगे भाई उसकी शक्ल क्या है, लेकिन बोलने में रवानी में अदा करेंगे डोट्रो। ही तो जो छा है ही मुझे डोट्रो आए, नाना कहेंगे ही मुझे डोट्रो आए। ही तो जो छा थे ही मुझे नानो थे, तमाम जा छा थियो मां जो डोट्रो थिया। डोट्रो मीन्स नवासा, मेल। अगर प्लूरल होगा तो डोट्रा, मेल सिंगुलर इज डोट्रो, मेल प्लूरल इज डोट्रा, ठीक है। नवासा इज डोट्रो, डाल वा जबर डो, हे पर जेर है, हे जेर हे, टे वा जबर ट्रो, डो हुट्रो। इसी तरह से नवासी विल बी डोट्री, डोट्री मैटरनल ग्रैंड डॉटर, डोट्री। डाल वा जबर डो, हे जेर ही, टे ये जेर टी, डोहट्री। डाल वा जबर डो या डे वा जबर डो, हे जेर है, टे ये जेर टी, डोहट्री इज नवासी। ठीक है, तो ये आज के लिए 4 काफी हैं। विल कंटिन्यू इट विथ मोर रिलेशंस टुमारो एंड ऑनवर्ड्स। तो दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ ये, इसमें हमने मैटरनल जो है वो रिश्ते सीखे। नानो इज नाना, नानी इज नानी, डोट्रो इज नवासा and dotri is nawasi. We will now learn about masi and masar and etc. तो आज हमने ये सीखा नानो, नानी, डोट्रो, डोट्री। Any questions about these relations or anything which you learned? Any questions overall about the class? Any questions? Any feedback? Any reflections? But short and crisp. अगर नहीं है तो यकीनन हम we will hope के आपसे कल मुलाकात हो, एंड होपफुली आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अजीज बशर्ते हयात और दुरुस्त की हालत, शाम 5 बजे एज पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 5 PM। तो कल की क्लास में, आज की क्लास का रिकैप हम करते चलें। आज की क्लास में जो रेगुलर सेगमेंट्स हैं, वर्ड ऑफ द डे, सेगमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे, वो हमने किए। लास्ट सेगमेंट में 4 रिश्ते हमने नए सीखे, जो कि तीसरा हिस्सा था। कल उसके चौथा हिस्सा करेंगे। दरमियान में आपकी असेसमेंट टेस्ट जो है वो उसकी की आपको बताई, और फिर स्कोर्स उस मुनासबत से फिर चंद दिन पहले जो असेसमेंट हुई थी उसके मार्क्स को मद्देनजर रखते हुए उनके टोटल में आपके टोटल स्कोर इस वक्त जो है स्कोर शीट क्या है। तो ये है सूरत हाल। आपको याद होगा मैंने आपको तैयार किया था जहनी तौर पर ताकि तैयार करे उसे, तो ताकि पोस्टर डिजाइन कराना। तो हिन हफ्ते दिस विल बी योर असाइनमेंट apart from the regular assignments, जेका assignment तव्हां हूं त मश्क जेका कंदा आहियो मोकिलींदा आहियो, but apart from that you will have to design a poster on this weekend। ठीक है, वो क्या होगा that I'll share with you either on Friday or on Saturday, क्योंकि इस हफ्ते सैटरडे क्लास होगी, मंडे को नहीं होती, तो उसके बदले सैटरडे को क्लास होगी। So tomorrow we will be learning some more relations। आखिरी सेगमेंट में वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे तो होता ही है, लेकिन कल हम इन डिटेल हम रिवाइज करेंगे जो ओ वाली जदवल है, और उसमें भी जो मुमकिना अल्फाज हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन उसमें भी आप हेल्प करेंगे। अलग अलग स्लाइड में आप मुझे पढ़ के बताएंगे कि ओ वो तो किस तरह से पढ़ा जाता है। तो परसों यानी ऑन फ्राइडे वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ OG जदवल। तो दिस इज इट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कल एक और चीज हम करेंगे जो कि मतलब आपके रेगुलर काम से अलहदा है। जस्ट गो थ्रू द स्लाइड नंबर 1। ये मैं आपको ये असाइनमेंट नहीं है, लेकिन उसको देख लीजिएगा, प्रीव्यू है असाइनमेंट का। कल फिर मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। जब आप स्लाइड 1 खोलते हैं तो उसमें एक लोगो है सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का, ठीक है, जिसमें इल्मुल इंसान वाली जो है वो आयत लिखी हुई है। एक लोगो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, एक तीसरा लोगो है, वो किस चीज का लोगो है वो उस पर लिखा है किस चीज का लोगो है, ठीक है।
उसको गौर से देखिएगा कि उस पर क्या लिखा है, राइट। उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है। कल हम इस बारे में बात करेंगे कि जो तीसरा लोगो है, जो मरून कलर का लोगो है, वकास साहब यू हैव अ क्वेश्चन, तो पढ़िएगा कि उस लोगो में क्या लिखा है, ठीक है। उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। डोंट जस्ट रश एंड टेल मी नाउ, बट गो थ्रू इट। आप उसको प्रीव्यू कर लीजिए, देख लीजिए, और फिर कल इस बारे में बात होगी। वकास साहब तव्हां कोई सवाल है? जी सर, सवाल इहो हुयो सर, इहो जेको ठाहिण ॾियणो आहे उहो थोरी मूंखां मिस थी वई उहा ॻाल्हि। जेको पोस्टर ठाहे ॾियणो आहे उहो कहिड़े तारीख़ ते ॾियणो आहे, कहिड़े ॾींहुं ॾियणो आहे सर? न, पोस्टर जी तस्वीर मोकिलणी आहे, उहो तव्हांखे डिटेल्स ॿुधाईंदासीं। मूं चयो त ईदर फ्राइडे और सैटरडे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं हुन पोस्टर में ठाहिणो छा आहे, हुन में लिखणो छा आहे। त वी विल टेल यू। तव्हांखे फ़िलहाल हुन तस्वीर मोकिलणी आहे, ऐं पोइ जॾहिं फाइनल डे थींदो असांजो, हुन में जेकॾहिं तव्हांजी फिज़िकल पार्टिसिपेशन जिन जी मुमकिन थी सघी, त हुन में असां पोस्टर्स डिस्प्ले कंदासीं। न त असां हुनखे पंहिंजे फेसबुक पेज ते या पंहिंजे वेबसाइट ते डिस्प्ले कंदासीं उन पोस्टर्स खे। उन्हनि जी तस्वीर मोकिलणी आहे फिल वक़्तु, ऐं उहो तव्हांखे संभाले रखणा आहिनि। थी सघे त फिज़िकली बि उहे तव्हां खां घुरायूं, पर फिल वक़्तु उहे तव्हांखे जुमे या छंछर ते तस्वीर ॿुधाईंदासीं। उहे वीकेंड ते, संडे ते तव्हांखे उहो करणा आहे। त उहे मूं फ़िलहाल इहो ॾिसो, तव्हां ज़हनी तौर ते तयारु रहिजो। हिन वीकेंड ते उहो करण जे लाइ वधीक मूं तफ़सील कान ॿुधाई, तो वधिक तफ़सील जुमे या छंछर ते ॿुधाईंदुसि। थैंक यू। तो उस लोगों को सर देख इहो लोगो जो जेको चयो पिया, सॉरी सर, जी इहो लोगो वारो ॿुधायो पिया, जेको टियों लोगो, इहो वरी हिकिड़ो जेको ॿुधाइजो, टिएं लोगो जेको आहे उनखे छा करिणो आहे? उन गौर सां ॾिसी अचिजो, सुभाणे हुन ते ॻाल्हाईंदासीं। ॾिसी अचिजो त उहो छाजो लोगो आहे, उन में लिखियल छा आहे, इहो तव्हां गौर सां ॾिसी अचिजो। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं कि शायद वो मतलब लोगों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये जानना जरूरी है ना कि भाई वो प्लेस हुआ है तो क्यों प्लेस हुआ है। हर स्लाइड पर 3 लोगोस हैं, तीसरा लोगो किस चीज़ का है, उस पर लिखा क्या हुआ है और उसका मतलब क्या है। थोड़ा उसको गो थ्रू कीजिएगा, कल इसके बारे में बात करेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ डेविल लाइज इन डिटेल। तो उस डेविल को ढूंढना है, तलाश करना है, लर्न करना है, और एंजॉय करते हुए करना है। एक करख चीज़ अपने आप पर हावी नहीं करने के, ये भी पढ़ना है, ये भी सीखना है, नो, उसको एंजॉय करते हुए करना है ताकि आपको लुत्फ आए। तो ऐसे ही प्रोसेस में लर्निंग में मजा आता है, लुत्फ आता है। तो थैंक यू सो मच। जिनके बहुत अच्छे नंबर्स आए, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। जिनके कम नंबर्स आए, नो वरीज, आप ट्राई टू इम्प्रूव इट। ठीक है, आपकी एक्सीलेंस पर कोई शक नहीं है हमें, सिर्फ यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज योर IQ मैनेजमेंट, दोनों का ख्याल रखना है ताकि टू द पॉइंट वो चीज़ एक्यूरेटली आए। तो इंशाल्लाह अजीज कल मिलते हैं, बशर्ते याद और दुरुस्त के हालात। मुझे कहते हैं यासिर काजी, और मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। दिल्यूं गड्ढ तो जुदाई करें बिना है, कहकर दिखाइएगा कभी किसी दिन, ये जो आखिर में कहता हूँ, दिल्यूं गड्ढ तो जुदाई करे बिना है, सदाई गड्ढ जिना पेर तेना खैर, अल्लाह ने कहबान।